हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू सो मच। ओके ओके, this is a new batch, right? uh, the results the results came out yesterday, CSS 2019. How encouraging were the results? Did you people got a chance to look at them? How encouraging were they? Yeah, I know, 4 batches. Yeah. Okay. Uh, okay. Naveed Saab, yeah, you always feel bad for people who are not allocated. I'll begin today's session because the results came out yesterday. So, since we're focusing too much on our own courses, there's hardly anyone talking about, CSS in general, your subject selection, and you know, interview, what you should do once you pass it, and so on and so forth. But I tell you a very interesting anecdote before we start because it's a new class. So let's break the ice with this anecdote. मेरे साथ क्या हुआ था? I what's I hardly I've never in fact explained my own CSS journey to my students, but today is a good day because a lot of people were not allocated. अब मेरी आवाज आ रही है? A lot of people were not allocated. So I think my story, my experience with CSS is very important to tell from several perspectives. It's very important. I think it's a good learning opportunity for all of you. When I took my first attempt, not many people know this about me, but I was not allocated. I was a I was an assistant professor with a university in Lahore. I used to teach economics. I was back from Canada. I lived in Canada for 5 years. Missed all my CSS attempts because at one point in time, I think back in 2011, I was thinking of taking the CSS exam, but then I left for Canada for higher studies and missed all my CSS attempts. When I came back, I decided to take the attempt, but learned because I did not know anything about CSS. So learned that I'd missed all my attempts. और उस वक्त age 28 हुआ करती थी. So then I thought, okay, I missed my attempt. So I was back from Canada, had a master's degree, so uh, began my teaching and development career. And then my development career began to take off. I got a job with a leading think tank and started that things began to work out for me. And then soon after that, I got a position in the UN system. So I started working for UNDP
the United Nations Development Program. And I was working with them as an economist in Lahore on the SDGs, Sustainable Development Goals agenda. Um, but then I learned during 2016 that age was uh, enhanced to sit the CSS exam, and I was extremely elated. I was very happy because this was something that my family wanted me to do, and in my own selfish pursuits, I had sort of at one point in time I wanted to evade the CSS attempt, but later when I wanted to do it, I had gone past my age to sit the exam. So I was kind of disappointed with myself and felt sad for my family who wanted me to sit the exam. My mother basically wanted me to sit the exam. So what I did was then, no voice. Okay. मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके, आई थिंक अगर कुछ लोगों की नहीं आ रही तो फिर उनके उनके अपने शायद इंटरनेट का इशू हो, because I think my internet is working all fine. Okay, so in well, in 20 then I when I the age was enhanced, I jumped right um, into CSS. मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों ने मेरा फॉर्म जमा करा दिया, मुझे कुछ सीएसएस के सब्जेक्ट्स का नहीं पता था तो उन्होंने कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स लिख लिए. But I had one big advantage over, of course, a lot of other people was that I was an economist. I was working with the government as doing some. I didn't work directly for the government, but I was working kind of with the government on a lot of projects. I understood Pakistan's economy, and I was working in the industry. So there's a lot of things that people, when they jump into this field, like things about governance and public policy and economics, that people, jump into this field and try to sort of pick through laborious reading. All of that, I did not have to go through all of that. So I had that, I was 30, even before jumping into it, I was 30-40% prepared for CSS. And so, but then I did not have time to study because I was teaching full time in a university. 4 courses मैं उस semester में पढ़ा रहा था जब मैंने CSS की first attempt थी. So much so that 15th of February was my first English essay exam, and 13th was the last exam. Midterms हो रहे थे मेरी यूनिवर्सिटी में, जो मैं यूनिवर्सिटी में इन्विजिलेट कर रहा था और मेरी ड्यूटी थी और मैंने एग्जाम बनाने भी थे. फिर 14 के दिन मैंने सारे पेपर चेक भी कर दिए क्योंकि हमने 20 को रिजल्ट देना था और 15 से 25 तक मेरे सीएसएस के इम्तिहानात थे, तो आई कुड नॉट हैव सबमिटेड द रिजल्ट. तो मैंने आखिरी पेपर इन्विजिलेट करके उसी रात 4 कोर्सेज के कोई 250-300 पेपर चेक किए. took me 6-7 hours, uploaded my results on the portal, and then next night, क्योंकि ऐसे के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई थी, but I since मैं आप लोगों को कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं रेगुलर लिखता था, मेरा काम रिसर्च करना था, तो I was kind of already writing every day. That was what I did for a living. It was my job for last 2 years. I was just writing every day. तो कुछ 1.5-2 साल से I was writing around 1,000 words a day on average. So for me, jumping into CSS was not like, joining an English essay class somewhere, or, practicing essays, or people go to the extent of memorizing essays on certain, recurring topics. But I didn't have to do all of that, thankfully enough. कि मेरा जो career था उससे पहले it was sort of, it had poised me well to sit the exam. So then I took the exam and I was not, just went in there. I think one of my great weaknesses was that I did not know any MCQs. So with the kind of preparation that I had, in the past 2 months, December, January में मैं
सैटरडे संडेज को थोड़ा पढ़ता था 3-4 घंटे, एंड दैट्स ऑल द प्रिपरेशन आई हैड, एंड दैट आई डिड फॉर अराउंड 2 months. So like 8-9 weekends at best. मैंने थोड़े थोड़े अपने नोट्स बना लिए थे, तो दैट्स व्हाट आई डिड सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक. और कुछ ऑप्शनल्स जैसे इंटरनेशनल लॉ मैंने रखा था, तो वो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ था, तो दैट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी, सो आई स्पेंट सम टाइम ऑन दैट. एंड आईआर एंड आई लॉ, gender in this subject, governance and public policy, and gender studies were kind of my own subjects, so I did not spend a lot of time on them. And then I went into the exam. I think one of my greatest weaknesses was, despite the fact that you're someone who's writing very regularly and you're someone who's reading and you're a researcher, so you could sort of take care of the theoretical part of the exam. But when you're asked to remember names of people and write exact dates, no matter how regularly you're writing or something, these things have to be memorized, right? So when I went into the exam, I realized one of my weaknesses is that I've not worked on the MCQs. और वहां से जो रिटन के मार्क्स हैं वो MCQs बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि उन पे आप 100% मार्क्स ले लेते हो. बाकी थ्योरी में आप जितना भी अच्छा लिख लो, 20 में से 14, 20 में से 15, मैं अक्सर पहली क्लासेस में एनालिसिस इस पे करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है. ये एनालिसिस मैं अक्सर करके देता हूँ कि इमेजिन करें, चले मैं अपनी स्टोरी पे बाद में आता हूँ, बट लेट्स डू दिस एनालिसिस बिकॉज़ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थिंक अबाउट इट. आपका जो टॉपर है सीएसएस का हर साल, जिसके 750 या 750 रिटन में इमेजिन करें मार्क्स होते हैं या 750 होते हैं, you need 600 minimum marks to pass. You need no, I was teaching in a university in Lahore. I was with University of Central Punjab at that time, UCP, with their economics department. Anyways, coming back to this, टॉपर में और जो बेयर मिनिमम है पास करने के लिए वो 600 है. टॉपर 750 पे होता है. कितना फर्क है टॉपर में और उसमें? 150 मार्क्स का 12 मार्क्स, 12 सब्जेक्ट्स. 12 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि अगर आप नीचे लाएं तो ऑन एवरेज जो बंदा 600 मार्क्स पे खड़ा है और जो 750 पे खड़ा है, उनमें अगर 150 का फर्क है, तो ऑन एवरेज 12 या 13 मार्क्स का पर सब्जेक्ट फर्क है. अच्छा, 12 मार्क्स के ऊपर के 3 या 4 मार्क्स छोड़ दीजिए, सिर्फ 8 मार्क्स पकड़ लीजिए. आपने थ्योरी वाले पार्ट में 7 में से 4 सवाल करने होते हैं. इसका मतलब है ऑन एवरेज पर सीएसएस क्वेश्चन जिसके 600 मार्क्स हैं पास उसने भी कर लिया है. जो लोग कल एलोकेट नहीं हुए, मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूं. और जिसके 750 हैं उसने ऑन एवरेज sorry, I didn't get your question. UCP के बच्चे, sorry, I didn't get it. Anyways, मैडम खतीजा ने कोई क्वेश्चन पूछा, I didn't get it. Anyways, coming back to it. So 8 मार्क्स 4 सवालों पे अगर आप डिवाइड करें तो जिसके 750 आ रहे हैं वो ऑन एवरेज सिर्फ 2 मार्क्स ज्यादा ले रहा है फ्रॉम समवन हु इज गेटिंग 600 मार्क्स. व्हाट डिफरेंस इज दैट? जस्ट 2 मार्क्स. जस्ट 2 मार्क्स. जिसके 600 नंबर हैं, इसका मतलब है अभी कंपल्सरी और उनको अलग अलग ना कीजिए. 600 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब है कि वो पर कोर्स 50 नंबर ले रहा है ऑन एवरेज, और जिसके 750 है वो पर कोर्स 62 या 63 मार्क्स ले रहा है. ठीक है. और ये जो 12 या 13 का डिफरेंस है, इसके 8 मार्क्स है, वो एक्सप्लेन होते हैं थ्योरी वाले पार्ट से कि वो ऑन एवरेज लेट्स से ये जो 50 मार्क्स लेता है 600 वाला, उसमें से 10 मार्क्स उसके हैं एमसीक्यूज में और 40 मार्क्स उसने ले लिया थ्योरी वाले पार्ट में. ठीक है जी.
थ्योरी वाले में 40 का मतलब है 4 सवाल है, तो ऑन एवरेज वो 10 ले रहा है, ठीक है। और जिसके 750 है वो ऑन एवरेज उन्हीं 4 सवालों में 12-12 मार्क्स ले रहा है, ठीक है। तो उसके 48 हो गए। और ऊपर जो एमसीक्यूज है, उसने एमसीक्यूज में भी 10 लिए, तो 40 प्लस 10 उसके 50 आ गए। उसने एमसीक्यूज में 14 या 15 मार्क्स लिए, तो 48 प्लस 14 उसके 62 मार्क्स बन गए। एंड पे क्या हुआ, वो सीएसएस का टॉपर बन गया, अपनी मर्जी का ग्रुप भी मिल गया, जो भी आपको ग्रुप पसंद है। एंड somebody who's done the exactly the same amount of effort lands with no allocation. So the idea here is कि आप उन 2 मार्क्स को टारगेट करें। अब मैं ये भी बात बताता हूँ कि उन 2 मार्क्स से और एमसीक्यूज के वो जो ऊपर 4 या 5 वो 10 ले रहा है और वो 14-15 ले रहा है, ये कितना डिफरेंस क्रिएट करती है। इन्हें मैं बोलता हूँ मार्जिनल चेंजेस, जैसे हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, बिकॉज दीज आर चेंजेस फॉर विच यू वर्क ऑन द मार्जिन, एंड व्हेन यू वर्क ऑन द मार्जिन यू मेक स्लाइट एडजस्टमेंट्स, तो वो आपको ऊपर के 2 नंबर ले देती है। आपको बहुत बड़ा, मैं ये इसलिए आसानी पैदा कर रहा हूं कि इफ यू स्टार्ट एमिंग फॉर दोज 150 और 175 मार्क्स, वो आपको इतना बड़ा पहाड़ लगेगा दैट you know either you'd be discouraged or you'd be deterred. आपने वो 150 नंबर नहीं लेने, आपने वो 175 ऊपर के नंबर की कोशिश नहीं करनी, आपने सिर्फ ये 2 नंबर हर सवाल में लेने। हर एक इंडिविजुअल सवाल जो आपने उन 12 एग्जाम्स में देना, उस इंडिविजुअल क्वेश्चन को टारगेट करें कि मैं उस सवाल को, उसको कंटेंट तो आपको जो आता है वो आपने लिखना है, लेकिन वो क्या स्लाइट एडजस्टमेंट्स हैं जिनसे आप 10 की बजाय 20 में से 12 मार्क्स ले लेंगे, या 12 की बजाय 14 मार्क्स ले लेंगे उस सवाल में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली एमसीक्यूज की क्या अहमियत है, लोग एमसीक्यूज पे टाइम स्पेंड नहीं करते, वो थ्योरी, दे आर सो बॉग्ड डाउन बाय द थ्योरेटिकल पार्ट कि वो थ्योरी फोकस करते रहते हैं और मेमोराइज करते हैं हेडिंग्स को, और उसके बाद एग्जाम की रात को मोस्ट लोग सीएसएस फोरम्स के ऊपर 20-30 एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज, 60 एमसीक्यूज पढ़ के चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि दोज मार्क्स व्हिच वर वेरी वेरी इजी मार्क्स व्हिच वर अप फॉर द टेकिंग, वो उनको नहीं मिलते। तो माय स्ट्रेंथ, कमिंग बैक टू माय स्टोरी, ये आंसर कैसे करना है और वो ऊपर के 2 मार्क्स कैसे लेने हैं, तो जब हम इस कोर्स के आगे चलेंगे तो हम इस पे बात करते रहेंगे। लेकिन मेरी दफा ये हुआ कि मुझे तो बिल्कुल इन चीजों की अवेयरनेस अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं थी। आई वाज, इसलिए नहीं कि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, आई कुड नॉट comprehend any of this, just purely for the fact that I was not part of this field. CSS एक मुकम्मल फील्ड है और जब आप इसका हिस्सा बनते हैं तो आपको इसकी निटी-ग्रिटीज, इसके उतार चढ़ाव, इसके खदोखाल आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आते हैं। I was not part of this field. Anyways, so I went, I took the exam and when the result came out, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं अपनी इसलिए कह रहा था कि the written का रिजल्ट आया तो one of my friends called me up. शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों को इन बातों का ना पता हो, पर मुझे नहीं पता था। तो one of my friends called me up and he said to me कि यार तेरा CSS का रिजल्ट आ गया और तेरा लिस्ट में नाम है। तो आई डिड नॉट नो, इस फील्ड के लोगों को पता था कि आज रिजल्ट है, मुझे नहीं पता था। आई वाज वर्किंग इन द ऑफिस, तो मुझे इतना भी नहीं पता था कि लिस्ट में नाम आने का क्या मतलब होता है। आई ऑलवेज थॉट कि आपका नाम लिखा होगा, आगे पास लिखा होगा, कुछ लोगों के नाम के आगे फेल लिखा होगा, so on and so on. So I asked him this innocent question कि मैं पास हूं या फेल हूं? तो he started laughing. उसने कहा जिसका CSS की लिस्ट में नाम होता है रिटर्न के रिजल्ट के दिन, वो पास ही होता है, क्योंकि फेल वाले का नाम उसमें आता ही नहीं। So I was very happy, but I thought to myself कि यार मैंने पढ़े बगैर एग्जाम दिया था, तो even if I passed, I would pass at the bare minimum. So I asked my friend another question, and that was even more innocent. I said to him कि यार मेरी allocation लेकिन नहीं होगी
क्योंकि 40 नंबर चाहिए होते हैं आपको कंपल्सरी में, तो 40 into 6 is 240, और 33 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको ऑप्शनल में पास होने के लिए. 33 into 6 is 198. So 240 plus 198 is 438 marks. What if I have something like 445 or 450 and so on and so forth? So he said to me, yaar, you passed, you're probably the first person who's passed the exam, और पास होने के बाद वो पास होने तक भी उसको इतनी बातें इतना नहीं पता. So he said to me कि आपको जो basic number होते हैं, if your name is in the list, means you have at least 600 marks. So I was very happy. So he says कि आपने compulsory भी पास करने हैं, optional भी पास करना है, minimum 600 भी होना है, तब आप overall CSS पास करना. I was very happy. So then I started thinking कि अच्छा अब तो I was a public speaker for a very long time, did parliamentary debating in school and university. So I thought, you know, speaking is my forte and I used to teach as well. So I would just go in front of the panel and express myself. And that's it. That's it. So I thought to myself that I'm safe. You know, अब मेरे अगर marks 600 से ऊपर हैं तो फिर तो I'm safe. फिर मेरी allocation तो होगी. So the result came out in June and मेरी allocation नहीं हुई. I did not look at the result. I did not know anything else about CSS. So I just, I was very disappointed though because I wanted to do it for my family, but मेरी allocation नहीं. And I कल से कुछ मेरे और स्टूडेंट्स जिनकी एलोकेशन नहीं हुई तो उनको भी मैं ये बात सुना रहा हूँ. शायद आप में से भी कुछ हों जिन्होंने 19 में एग्जाम दिया और अगर किसी की नहीं हुई तो द स्टोरी इज फॉर देम एज वेल. तो मैंने मेरी एलोकेशन नहीं हुई. 4-5 दिन हो गए, वेरी डिसअपॉइंटेड. अच्छा, ये एक और बीच में स्टोरी आपको मैंने मिस कर दी कि मैंने जब 17 का रिटन पास किया तो उस वक्त मुझे लगता था कि अब मेरे 600 से ऊपर है तो मेरी एलोकेशन तो होगी. तो मेरे पास 18 की भी अटेम्प्ट थी एज एनहांसमेंट की वजह से, तो मैंने उसके लिए कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था. तो मैंने उसी दिन से किताबें बंद कर दी. मैंने कहा यार इट वाज सो इजी, यू नो, आई डिड नॉट डू एनीथिंग येट आई पास्ड. और अब 600 से ऊपर मेरे नंबर भी हैं, एलोकेशन तो मेरी होगी, इंटरव्यू इज माय फोर्टे. तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया. 18 की अटेम्प्ट से 2 दिन पहले मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया कि मैंने पढ़ाई तो नहीं की, मेरी वही तैयारी है जो 17 में थी, पर मुझे अटेम्प्ट देनी चाहिए. उन्होंने कहा हाँ दे दो, जस्ट ऑन द सेफर साइड, तुम्हारा हो तो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला. क्योंकि मुझे उस वक्त लगता था कि अगर बस रिटन पास हो गया तो एलोकेशन, अगर आप इंटरव्यू में जाके थोड़ा बहुत भी कुछ बोल दो तो एलोकेशन हो ही जाती है. सो आई वेंट इनटू द 18 एग्जाम, और जब 18 के जून में मेरा 17 का फाइनल रिजल्ट आना था तो तब तक मैं 18 का भी रिटन का एग्जाम दे चुका था, और 18 में मेरी एलोकेशन नहीं होती. आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. मैंने बंद कर दिया, डिड नॉट लुक इनटू माय रिजल्ट. क्या 4-5 दिन बाद somebody completely unknown to me sends me a Facebook messenger message and says to me, are you joining? So I thought it's somebody who's mocking at me, somebody who's seen the result and knows, because a lot of people were sending, you know, consolation messages that, you know, pura Pakistan wo result pada hota hai, so people read your name in the list. So somebody sent me a message saying, are you joining? And I thought, here's a person who's trying to, you know, sort of make, trying to find the funnier side of my misery, and you know, so I said to, I did not know him, so I said to him that no, I did not get allocated. So I gave a straight answer. He said, okay, I got allocated, blah blah blah, and I'm your batchmate and this and that. And I don't know if you've seen the list, but there is something called reallocation, in which if people from the same province as you do not join their seat, those seats are passed on to the next person in the merit list.
And do you know that you're the next person in the merit list? So I went back to my result because मैंने अपने नाम के आगे dash देख के उस दिन से result बंद कर दिया. So I went back to my to the list, and I saw that I was the second person, not the first, who was not allocated from Punjab. So I was अगर तो उस बंदे ने मुझे कहा, so if you would need 2 people to quit for the offer to come to you. So I said, okay, fair enough. But I said to myself, who would, be allocated in CSS? And so I asked him the question, do people generally quit? And he said, yes, they do. क्योंकि इनमें से बहुत लोग हैं जो already allocated होते हैं किसी ग्रुप में, उन्होंने improve करने के लिए दोबारा दिया होता है, लेकिन उनका improve नहीं होता. So on and so forth. कुछ लोग PMS के होते हैं, वो already serve कर रहे होते हैं, कुछ CSS के होते हैं. So I said, अच्छा. And then I said, of course, yeah, but तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है. तुमने मुझे पूछा, are you joining? So you jumped down to the joining part directly. So I'm sure you have some information. He said, yes, I know at least 3 people this year who are not joining, which is why I am 90% sure that you would get the offer. So I said, okay. So I just began to wait. And that person was kind enough. He sent me their names and numbers. He said, these people are not joining. And then he sent a 4th number and said, this is my elder brother, because both of those brothers were allocated in the same common. So he said, this is my elder brother, and my elder brother is already in Inland Revenue Service, and he's got foreign service. And my elder brother is also not joining, and he's also from Punjab. So I have 1 case in my home, and I know 3 more people. So there were 4 to begin with. और मजे की बात ये हुई कि वाकई 1-2 महीने गुजरे और ऐसा ही हुआ जैसे उसने कहा, काफी हद तक. बाकी 3 लोगों ने तो वाकई नहीं ज्वाइन किया, सिर्फ उसका अपना भाई ज्वाइन कर गया. So मैंने उसको, and then of course we joined it. मुझे ऑफर आ गई. I joined in the office management group, जो secretariat group. और so we still make fun of him for the fact कि यार मुझे अपने भाई की बेस पे वो ऑफर कर रहा था कि तुम्हें ऑफर लेटर जरूर आएगा, और उसके अपने भाई ने ही आखिरी मिनट पे धोखा देके ज्वाइन कर लिया. So this was my first one, and then of course मैंने अपने CT. अच्छा, मजे की बात, जब मुझे आया तो मैं उस वक्त, not bragging about it, but since I want to tell you the story, तो मैं my family wanted me to take the CSS for police service. Quite an not an unusual demand. A lot of families want that, but it was very sort of uncharacteristic of me to join the police service. I didn't want to do that. So my family, they were happy that I got allocated and I become a CSP and all of that. पर मैं undecided था कि मुझे जिस ग्रुप के लिए मैं कर रहा था, अगर वो नहीं मिला तो क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, and all of that. तो और जब तक मेरी ये रीएलोकेशन आई थी, जून में रिजल्ट आया, और मेरे तक लेटर आते आते रीएलोकेशन का सितंबर हो गई थी, और अक्टूबर के लास्ट वीक में कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होना था. तो मेरी उसी दौरान क्या हुआ कि जो मैंने अगले साल का एग्जाम दिया हुआ था उसका रिजल्ट आता है और मेरा रिटर्न फिर पास हो जाता है. अच्छा, when I passed the return, Nisar Mari, yes, he's not only my batchmate, we were roommates for a very long time. So when I passed the next attempt, the next written exam, मेरे इंटरव्यू मार्क्स थे 212. मैं इंटरव्यू की स्टोरी किसी और दिन शेयर करेंगे. So next year when I passed the written exam, तो तब मेरे लिए the decision became very, very obvious.
कि जब मैंने रिटन पास कर लिया तो मुझे लगा कि अगले साल मेरा इम्प्रूव हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, शायद मेरे रिटन के मार्क्स इस साल ज्यादा हो। तो मैंने फिर सेक्रेटेरिएट ग्रुप को ज्वाइन किया, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि मैं अगर उस वक्त ज्वाइन करता तो चूंकि मैं अपनी एज के लास्ट 2 सालों में ये दोनों अटेम्प्ट्स दी थी, तो आपको पता है कि इफ यू डू द सर्विस फॉर 2 years यू गेट 2 years एज रिलैक्सेशन। तो उसके थ्रू अगर मैं उस वक्त OMG ज्वाइन करता तो बाय द टाइम मेरी थर्ड अटेम्प्ट का टाइम आना था तो मेरे 2 साल सर्विस में पूरे हो जाने थे और मुझे 2 साल की रिलैक्सेशन मिल जानी थी, तो मैं अपनी थर्ड अटेम्प्ट भी देख सकता था। सो आई केप्ट माय थर्ड अटेम्प्ट। जब मेरी फिर मैंने सेकंड का रिटन पास हो गया, इसकी CTP के दौरान मैंने उसका इंटरव्यू दिया, एंड जो मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी उसमें मेरा मेरिट था जो आई डिडंट गेट पुलिस अगेन बाय अ डिफरेंस ऑफ लाइक 16-17 मार्क्स। अगेन मेरे रिटन के मार्क्स, क्योंकि दोनों अटेम्प्ट्स में मैंने रिटन पे फोकस बिल्कुल नहीं किया था, तो मेरे रिटन के मार्क्स लो थे डिस्पाइट being in the top 20-30 in the interview both the times, which of course got me the allocation each time. I could not end up in the top 20 or 30. मेरी second में 89th position थी, and और उसके बाद फिर मैंने attempt नहीं की। Anyways, और मैंने जो मेरी second में group था, मेरा merit था IRS, Commerce and Trade, inland revenue और at 89th position और audit। तो मैं तीनों में से कोई भी ले सकता था, पर मैंने कॉमर्स एंड ट्रेड को ऊपर रखा था अपनी प्रेफरेंस में, तो आई गॉट कॉमर्स एंड ट्रेड। लेकिन मैंने कॉमर्स एंड ट्रेड को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसके लिए एक तो मुझे जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप की सीनियरिटी लूज करनी पड़नी थी, फिर मुझे सेक्रेटेरिएट ग्रुप पसंद भी था, एंड फॉर थर्ड रीजन ये थी कि मुझे अपनी STP दोबारा करनी पड़नी थी, which was a lot of pain। तो मुझे था कि अगर मुझे पुलिस सर्विस मिलेगी तो सिर्फ तब मैं अपना ग्रुप चेंज करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। So this was the idea back then, and this has been my own CSS story। तो इसलिए मैं आपको चीज बता ये रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिटन के ऊपर मेजर फोकस करें, और रिटन में एक दफा आप अच्छे मार्क्स ले लें 700+, तो आपको फिर, और उसमें रिटन में 2 या 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, पहली सब्जेक्ट सिलेक्शन, उसके बाद एक बेस लेवल तैयारी। मैं तैयारी को ये नहीं कहता कि आपकी तैयारी हो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बस अच्छी एक बेस लेवल तैयारी। उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन, बेस लेवल प्रिपरेशन, थर्ड थिंग स्लाइड एग्जाम टेक्निक्स, और उसमें एग्जाम टेक्निक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। द फोर्थ थिंग इज स्किल्स, नॉलेज वर्सेस स्किल्स में आई वुड ऑलवेज प्रेफर स्किल्स ओवर नॉलेज। व्हाई? आई टेल यू व्हाई। मेरे ऑप्शनल्स थे IR, ILO, जेंडर स्टडीज। और बाय द वे मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों अटेम्प्ट्स में आई वाज नॉट अ CSS पर्सन। आप लोग तो है ना, आप लोग इस एकेडमी में आते हैं, बाय द टाइम आप अपना फॉर्म फिल करेंगे CSS का, आप इतने टीचर्स, इतने मेंटोर्स, इतने लोगों से मिल चुके होंगे। मुझे तो CSS के सब्जेक्ट्स भी नहीं पता था, तो मुझे लोगों ने कहा यार IR रख लो, मैंने IR रख ली। हालांकि आई वॉज एन इकोनॉमिस्ट बाय प्रोफेशन, मैं यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में इकोनॉमिक्स नहीं रखी। मेजर ब्लंडर दैट आई मेड फॉर माय ओन रिटन। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करें, लोगों से मिलें, बात करें, पास्ट पेपर्स पढ़ें उन सब्जेक्ट्स के। फिर एग्जामिनर रिपोर्ट होती है, जिसका मुझे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया CSS तो मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई चीज होती है कॉल्ड द एग्जामिनर रिपोर्ट। तो एग्जामिनर रिपोर्ट होती है आपकी FPSC की वेबसाइट पे, उसको पढ़िए। हर साल उसमें वो ट्रेंड्स बताते हैं हर सब्जेक्ट के, कितने लोगों ने रखा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उससे आपको पता चलता है कि जो सब्जेक्ट ज्यादा लोग रख रहे हैं उसका स्कोरिंग ट्रेंड अक्सर इफेक्ट हो जाते हैं। तो look at all of those factors and then choose your subjects। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जो लोग भी बताते हैं और आपने सुना भी होगा, कि अपने आपका जो फोटे है, आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है वो रखें।
जबरदस्ती ये बात सुन के कि नंबर किस में ज्यादा आते हैं ना रखें। जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है उसमें अगर वो हिट भी हो जाए या टारगेट भी हो जाए किसी के साथ, तो आप फिर भी यू स्टिल एंड अप सेलिंग थ्रू इट। 2-3 तो अहम बातें ही हैं, लेकिन एक और अहम बात है वो ये कि स्किल्स के ऊपर काम करें। एक दफा बेस नॉलेज से मतलब है जो सिलेबस उन्होंने एफपीएससी की वेबसाइट पर डाला है, जब आपका 12 के 12 सब्जेक्ट्स का वो खत्म हो जाए तो अपने स्किल्स पे काम करें। अब मैं इसको हमेशा ऐसे कैटेगराइज करता हूं कि 60% ऑफ योर सीएसएस डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट, 20% is your preparation, and the rest 20% is divided equally between how well you've selected your subjects and of course some part of that is also your luck या जिसको जो भी आप करते हैं, पर major 60% skills। अच्छा, skills में अब 3 या 4 चीजें आ जाती हैं। skills में आ जाता है आपका एग्जाम, हाउ वेल यू कैन स्ट्रक्चर योर एग्जाम। अब इसको मैं स्किल क्यों कह रहा हूं? इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन एक्वायर ओवरनाइट। स्किल ज्यादातर वो है, प्रेपरेशन ऐसी चीज है जिसको आप एक्वायर कर सकते हैं 5-6 महीने की तैयारी से। स्किल्स को आप 5 या 6 महीने में एक्वायर नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका अंग्रेजी का एक्सप्रेशन जो है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन सीएसएस, वो 5 या 6 महीने में डेवलप करना बहुत मुश्किल है। वो ओवर जो आपने 20, 22, 23, 25, 26 साल की जिंदगी गुजारी है उसमें वो डेवलप होता है ओवर द इयर्स। इसी तरह ही आपका रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल क्या है? रीडिंग स्किल है कि आप कितनी अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंड करते हो व्हाट यू रीड, कितना क्विकली कॉम्प्रिहेंड करते हो व्हाट यू रीड, एंड देन हाउ लॉन्ग, परसेवरेंस कितनी है, हाउ लॉन्ग कैन यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ बुक एंड कीप रीडिंग एंड कीप कॉम्प्रिहेंडिंग इट। तो ये तीनों तो रीडिंग स्किल। अच्छा, अंग्रेजी का जो एक्सप्रेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं 60% स्किल्स को देता हूं क्योंकि उसने आपको ऐसे पास कराना है, और ऐसे पास होगा तो ओवरऑल सीएसएस 70-80% पास हो गया। अच्छा, और फिर वही आपने चूंकि बाकी एग्जाम्स भी अंग्रेजी में देने हैं, तो अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा है और आप अच्छे, अच्छा, फिर तीसरी चीज है एक्सप्रेशन के साथ एनालिटिकल स्किल। अब आपको नॉलेज क्यों बहुत कम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जिन लोगों की एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हुई होती है वो एक आर्ग्यूमेंट की बेसिस पे 5 सफे लिख लेते हैं। एंड आई एम नॉट मेकिंग एन एब्सर्ड क्लेम हियर। ये रटी रटाई पक्की बात कोई, मैं ऐसे एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं कर रहा क्योंकि आज हमारा फर्स्ट सेशन है, तो मैं कोई हेरोइक क्लेम्स नहीं करना चाहता। ये मैं आपको जेन्युइन बात है। आई नो पीपल हु हैव डन दिस। नॉलेज, बेस नॉलेज। मुझे सवाल आता है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में पॉलिसी एडवोकेसी के ऊपर। आई नो ओनली वन थिंग अबाउट पॉलिसी एडवोकेसी, पर अगर मेरे पास एनालिटिकल एबिलिटी है तो मैं उसी की वेरियस डायमेंशंस को एनालाइज करूंगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, और मैं 5 सफे, एक चीज मुझे उसके बारे में पता है, उसी को मैं इतना स्ट्रेच करूंगा कि मैं 5 सफे लिखाऊंगा, जो कि आपको 20 मार्क्स के लिए 5 या 6 सफे चाहिए होगा। Not everyone can do that, of course. जिनके पास analytical abilities है, people who can sort of reason and come up with compelling arguments. आप फैक्ट एक है आपके पास, उस एक फैक्ट के अराउंड आपने आर्ग्यूमेंट्स बनाने शुरू करते हैं। तो इसलिए एनालिटिकल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग इतना रट्टा लगाते हैं, वो हजारों फैक्ट्स याद कर लेते हैं, हजारों इवेंट्स याद कर लेते हैं। So all they know is, you know, what happened in the past, either events or numbers or data or facts, पर arguments नहीं होते। उन फैक्ट्स को स्पिन करके आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट करना नहीं आता क्योंकि एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है। इसलिए CSS is not only about memorizing stuff, because people get into it, think it's the most difficult exam in Pakistan. They have to buy all the over-the-counter books, जो भी Said Book Bank and all of these stores are selling those books, and you just buy them और अपने कमरे में छत तक किताबें भर लो
पूरे खानदान को भी लगे कि जी बच्चा CSS कर रहा है, 2.5-3 साल से कमरे से बाहर नहीं आया, खाना उसको एक कोरोना पेशेंट की तरह कमरे के बाहर हम रख के जाते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। जो लोग बातें मैं अक्सर सुनता हूँ स्टूडेंट से, और उसके बाद इतने फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए होते हैं कि जो नॉलेज कंपोनेंट है जिसपे आपको सिर्फ 20% काम करना था, आपने 95% काम उस पर कर दिया, स्किल्स पे तो काम किया नहीं। अब बच्चे एकेडमीज में जो मेरे पास आते हैं, हम लोगों के पास आते हैं, मेरी क्लास लेंगे, उसकी क्लास लेंगे, उसकी क्लास लेंगे, सबका एम्फेसिस एक चीज, सर नोट्स मिल जाएंगे, सर नोट्स मिल जाएंगे, सर नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स मिल गए, उसके बाद उनको मेमोराइज करना शुरू कर दिया। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक सब नोट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं और नोट्स को याद कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है आप सिर्फ उस 20% पे काम कर रहे थे पिछले 7 महीने से। जब एग्जाम में गए, क्योंकि स्किल पे काम नहीं हुआ था, तो आपको द स्किल्स बिगैन टू लेट यू डाउन इन दोस 10 days। और फिर क्या होता है, जब सेकेंड अटेम्प्ट पे जाते हैं तो क्यों लोग पास हो जाते हैं, ये भी मैं भी बताता हूँ। या थर्ड में जाते हैं तो ग्रुप भी इंप्रूव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग एक दफा नोट्स बना चुके होते हैं, नॉलेज अक्यूमुलेट कर चुके होते हैं, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में वो उन्हीं चीजों के ऊपर वक्त नहीं जाया करते। ये मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा इसको। सब लोगों से टॉक टू पीपल जिन्होंने सेकेंड या थर्ड में या पास किया है या इम्प्रूव किया है, तो उनकी वो उसमें फिर सिर्फ स्किल्स पे काम करते हैं। वो यहाँ मेजॉरिटी लोग सिर्फ MCQs पे फोकस कर रहे होते हैं, और उसके बाद स्किल्स पे वो कैसे काम करते हैं कि पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, हैंड राइटिंग स्किल्स बेहतर हो रहे होते हैं, एक्सप्रेशन बेहतर हो रहा होता है, एनालिटिकल एबिलिटी जब पास्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं बेहतर हो रही होती है। तो अल्टीमेटली सिर्फ उसी नॉलेज पे जो उन्होंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्यूमुलेट की थी, उसी नॉलेज की बेसिस पे वो पहले फेल हो गए या पास हुए और एलोकेट नहीं हुए, और सेकंड में उसी नॉलेज की बेसिस पे वो 600 की बजाय 700 नंबर ले लेते हैं, 710 नंबर ले लेते हैं। नॉलेज सेम है, यू लेवरेज्ड द सेम नॉलेज विद एनहांस्ड स्किल्स टू गेट अ मच हायर मार्क, एट अ मच हायर। सॉरी, sorry, proper name format, sorry, ये क्या हो रहा है? सॉरी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, यहां तक ये तो खैर CSS की बातें थी। अब आते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। इस सब्जेक्ट की यूटिलिटी क्या है? मैं 7:20-15 पे आई टेक अ ब्रेक फॉर अ फ्यू मिनट्स, तब तक मैं गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस कर दूं, इसके सिलेबस के ऊपर हम थोड़ी सी अभी बात करते हैं, और सेकंड हाफ ऑफ द सेशन में फिर हम स्टार्ट करेंगे विद द कोर्स। जी जी, we'll take a break around 7:20-25 and then come back around 7:45. जी जी, नमाज के लिए ब्रेक लेंगे। अच्छा सुनिए आप गौर से, इस सब्जेक्ट को आप किन सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे? इसका जो काउंटर पार्ट है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इजली आई टॉट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पब्लिक एड अभी भी गवर्नेंस ज्यादा लोग रखते होंगे, मुझे नोआ के स्टेटिस्टिक्स नहीं पता, पर पब्लिक एड ज्यादा लोग रखते हैं। और उसकी वजह यह है कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, लोगों को लगता है कि public policy is either a very technical subject, or people with economics background and so on and so forth should take this subject. And I don't know, because of the name, maybe people get deterred by this subject. People think, we should not take it. And a lot more people end up taking subjects like public ad or gender studies, और अब बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आई सॉ दिस ट्रांजिशन हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज इन 2019, जब ये 19 के अभी पिछले साल रिजल्ट आया रिटन का, तो मेरी क्लासेस में नोआ में
30-40 लोग हुआ करते थे उससे पहले गवर्नेंस में। और नोआ ने तो, बल्कि आप लोगों को शायद इस बात का नहीं पता कि नोआ में गवर्नेंस की क्लास नहीं हुआ करती थी पहले, यानी समर ऑफ 2019 तक नोआ में गवर्नेंस नहीं पढ़ाई जाती थी। मैं जब लाहौर से आया इस्लामाबाद 2019 के समर में, तो मैंने डॉक्टर साहब को कन्विंस किया, डॉक्टर आतिफ को, कि हमें गवर्नेंस भी शुरू करनी चाहिए। और उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स के लिए भी अब इस अटेम्प्ट में कन्विंस किया। मेरी इकोनॉमिक्स की भी क्लास होती है, आप लोगों में से कुछ को शायद पता होगा। तो जब मैंने गवर्नेंस के लिए उनको कन्विंस किया, तो ये लाइक कि सर इंटरेस्ट होगा लेकिन देखते हैं, वी शुड डू इट, सब्जेक्ट तो पॉपुलर हो रहा है। तो 30-40 लोग समर में आना शुरू हो गए, व्हिच वाज अ बिग इनफ नंबर फॉर अस टू स्टार्ट अ सेपरेट सेशन फॉर गवर्नेंस। और 19 का जब अक्टूबर में रिटर्न, 19 के अक्टूबर में जब 19 के अटेम्प्ट का रिटर्न का रिजल्ट आया, जो अभी आज से कोई 6-7-8 महीने पहले, एकदम मुझे रिक्वेस्ट आनी शुरू होगी कि सर 2 क्लासेस करें, 3 क्लासेस करें। और बाय जनवरी ऑफ 2020, 2020 की अटेम्प्ट से पहले, मेरे पास कोई 21 या 22 बैचेस थे, और हमने 4-4 बैचेस को इकट्ठे करके कोई मैं 5 सेशंस पढ़ा रहा था, 5 डिफरेंट क्लासेस पढ़ा रहा था। और मेरे पास 250 से 300 स्टूडेंट सिर्फ गवर्नेंस का था नोआ में, राइट। अच्छा, मजे की बात, ये मैंने सारी बात आपको इसलिए बताई कि ये सब लोग 19 के अक्टूबर में जेंडर स्टडीज का रिजल्ट देखकर आए थे। बुरा रिजल्ट आया, पीपल स्टार्टेड जंपिंग ऑन द गवर्नेंस बैंड वैगन, जेंडर का रिजल्ट देखते हुए। 60% skill, 20% is your knowledge, your preparation, and the rest 20% is your, बताइए जी, आखिरी 20% क्या बताया था मैंने? No, 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 no. I wasn't luck. आखिरी 20% was knowledge, skills. आखिरी 20% was subject selection. और सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर लक शामिल इसलिए हो जाती है कि आपका जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए बड़ा सोच समझ के किए, लेकिन अगर उनमें से कोई टारगेट हो जाता है उस साल, तो यू आर जस्ट अनलकी, आई वुड से। और अगर आपके सब्जेक्ट्स में से कोई सेल कर जाता है उस साल, तो यू आर वेरी लकी। इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा लक का फैक्टर शामिल किया। एनीवेज, नहीं, एक्सप्रेशन तो आपका स्किल है ना, वो तो 60% में शामिल है। उस 60% में क्या है? योर हैंड राइटिंग स्किल्स, हाउ लेजिबल योर हैंड राइटिंग इज। योर हैंड राइटिंग स्पीड इज ऑल्सो अ स्किल मच नीडेड, क्योंकि ये हाथ का एग्जाम है, आपने लिखते जाना है। हाउ गुड इज योर इंग्लिश राइटिंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें शामिल है वो भी मैं बता देता हूँ, आगे मजीद उसकी बाइफरकेट। एक्सप्रेशन में शामिल है हाउ गुड इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्सप्रेशन में शामिल है कि आप वोकैबुलरी कितनी अप्रोप्रिएट, मुश्किल या आसान वोकैबुलरी नहीं मैं कह रहा, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब है जहां किसी मुश्किल भारी भरकम लफ्ज की जरूरत है आपको वो भी आता हो, जहां किसी आसान लफ्ज की जरूरत। सो वट एवर सूट्स द कॉन्टेक्स्ट, सो यू आर एबल टू राइट अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी और ग्रामर, ये 3 चीजें हैं। और यही 3 चीजें आपके, अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, यही 3 चीजें आपकी अंग्रेजी ऐसे में भी टेस्ट हो रही होती है। अगर आप ग्रामर ठीक लिख दो, आपका कंटेंट तो है ही है। और कंटेंट ज्यादातर लोग करंट अफेयर्स की ऐसे करते हैं। अगर आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी हो तो कंटेंट तो सबका ही ठीक होता है। उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस देना अपने ऐसे को, कोहेरेंस उसमें इंश्योर करना, और उसके साथ राइटिंग में आपके एक्सप्रेशन में ये 3 चीजें होनी चाहिए, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी। सेंटेंस स्ट्रक्चर का से मतलब क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी 2 बातें। सेंटेंस स्ट्रक्चर में साहब मुझसे अब ये इंग्लिश ऐसे की क्लास बन जाएगी, पर सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक बात तो अहम ये है कि आपको पता हो कि मैंने किस लफ्ज से या किस बात से स्टार्ट करना है और किस पे खत्म करना है। फिर दूसरी उसमें चीज है जो आपकी ये स्ट्रक्चरल चीजें होती हैं, जैसे मैंने कॉमा कहाँ डालना है, फुल स्टॉप कितने लंबे सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आएगा, छोटा सेंटेंस बनाना है या बड़ा बनाना है, वो भी एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है।
कॉलन कहाँ डालना है, सेमी कॉलन कहाँ डालना है, सारी स्ट्रक्चरल चीजें। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक और बात जो मैंने पहले कही वो अहम ये है कि किस वर्ड से स्टार्ट करें, किस वर्ड पे खत्म करें। अब एक मैं सेंटेंस फॉर इंस्टेंस सोचता हूं, जैसे कि मैं कह रहा हूं दिस आइडिया हैज रिमेन्ड विद मी फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। दिस आइडिया हैज रिमेन्ड विद मी फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। और इसी सेंटेंस को एक और लिखने का तरीका क्या है, for the most part of my life this idea has remained with me, right? क्या हुआ, जो for the most part of my life है उसको सेंटेंस के आखिर से उठा के मैं बिल्कुल शुरू में ले आया। अब ये ऐसी चीजें हैं अंग्रेजी ऐसे की भी कभी हम बैठेंगे तो डिस्कस करेंगे, जो मैं बिकॉज बता रहा हूं आपको, जो इंग्लिश ऐसे के टीचर्स नहीं बताते। अब क्या हुआ कि इसी सेंटेंस को लिखने के चूंकि दो तरीके हैं, मैं दो की बजाय 3, 4, 5 मुख्तलिफ तरीके आपको बता सकता हूं, या आपने एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की। अब इसमें आप अगर गौर कीजिए तो जो मैंने पहले वाला इसका स्ट्रक्चर बताया था सेम बात है, दोनों में अंग्रेजी भी ठीक है। अंग्रेजी की ग्रामर की गलती है, वोकैबुलरी की गलती तो नहीं है, वही सेम अल्फाज भी इस्तेमाल हुए दोनों सेंटेंस में, तो वोकैबुलरी तो बिल्कुल सेम है, ग्रामर की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कानों को, पढ़ने वाले को पहले वाला सेंटेंस ज्यादा मुनासिब मालूम होगा, दूसरे से ज्यादा मुनासिब मालूम होगा। इसलिए जब आप स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं ना सेंटेंस में, तो आपकी राइटिंग के अंदर एक ग्रिप, खूबसूरती आनी शुरू हो जाती है। इसलिए स्पेशली जब आप ऐसे, अब जाहिर बात है आप हर सेंटेंस के बारे में ये चीज नहीं सोच सकते कि इसमें मैं इसको उल्टा कर दूं या स्पिन करके ऐसे कर दूं, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं होता। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना लिखाई को, आप यू आर समबडी हु राइट्स वेरी रेगुलरली, तो आपका एक्सप्रेशन खुद ही इस तरह डेवलप हो जाता है कि जो फर्स्ट टाइम सेंटेंस आपके जहन में आता है ना, वही सबसे खूबसूरत वाला वेरिएंट होता है, क्योंकि मल्टीपल वेरिएंट्स हैं उस सेंटेंस को लिखने के, मल्टीपल तरीके हैं। दूसरी बात, अगर आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए ऐसे इसकी, अंग्रेजी उतनी आप रेगुलरली नहीं लिखते, तो वहां एटलीस्ट ये जरूर कीजिए कि जो ऐसे का फर्स्ट पेज है उस पे आप हर सेंटेंस के बारे में सोचें कि क्या इसको लिखने का इससे ज्यादा आसान और बेहतर और खूबसूरत तरीका हो सकता है। और आसान से मेरा वही मतलब है जो मैथ में कहते थे ना, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। आपको एक XYZ वाला एक्सप्रेशन वेरिएबल्स के साथ दे दिया जाता है और आप उसकी होते, वो सारे एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन आपने सबसे आसान वाले पे पहुंचना होता है। तो इंग्लिश ऐसे में भी आपने ऐसे ही करना है। द इजीएस्ट वे यू कैन एक्सप्लेन दैट थिंग जो सेंटेंस में है, उस इजीएस्ट वे तक आपने पहुंचना है। और जाहिर बात है जब उस आसान तरीके तक पहुंचेंगे तो वो कानों को भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा खूबसूरत मालूम होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो खैर ये एक्सप्रेशन फिर आपको हर पेपर में चलाता है। सो कमिंग बैक टू गवर्नेंस, तो आप इसको जेंडर से अगर कंपेयर करें, अव्वल तो जेंडर से कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि अलग अलग ग्रुप्स में है तो दोनों को आप एक साथ रख सकते, और जेंडर भी बहुत अच्छा कोर्स है। कुछ 2017 में उसने बहुत हाई मार्क्स भी दिए थे, 18-19 में अभी तक उतने अच्छे नंबर नहीं दिए, देखें 20 में क्या होता है। गवर्नेंस अभी तक बहुत अच्छे मार्क्स दे रहा है। अगर मैं इसकी स्कोरिंग ट्रेंड देखूं, 70 to 75, 65 अबव, इसके एवरेज मार्क्स 65 थे फॉर सीरियस कैंडिडेट्स। मैं नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को तो निकाल देना बीच में से, आप कि आपको कैंडिडेट आता है गवर्नेंस के पेपर में, वो एक सवाल करके उठ जाता है, वो एक नॉन सीरियस कैंडिडेट है, तो उसकी वजह से ओवरऑल एवरेज जो सब्जेक्ट की खराब होती है, और वो सब सब्जेक्ट्स की खराब होती है। तो हर सब्जेक्ट की एवरेज देखनी चाहिए फॉर ओनली सीरियस कैंडिडेट्स। तो अगर आप गवर्नेंस के सीरियस कैंडिडेट्स को देखें तो इस सब्जेक्ट की एवरेज 70-75 की एवरेज है इस सब्जेक्ट, क्योंकि हर साल ऐसा होता है हमारे पास ऐसी भी डीएमसी आती है, 20 नंबर है, 15 नंबर है, 22 नंबर है, तो आपको किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये नंबर होने का मतलब है आपको पता चल जाता है कि इट्स नॉट अ सीरियस कैंडिडेट। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनके गवर्नेंस जैसे ऑप्शनल्स में एटलीस्ट 40 अबव मार्क्स हैं, उनको हम सीरियस कंसिडर करते हैं। तो अगर उस तरह के लोगों की एवरेज निकाली जाए तो 70-75 फॉर पीपल हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर, जिन्होंने सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है,
अंग्रेजी का एक्सप्रेशन भी ठीक है, वो सिलेबस को जाके आंसर शीट पे प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, उन लोगों के 70-75 मार्क्स इसमें आते रहे, 65 की एवरेज है। और अच्छी तैयारी वाले, आई नो लॉट ऑफ पीपल, मैंने कुछ डीएमसीज गवर्नेंस उस तरह का सब्जेक्ट है जिसकी मैंने 87, 88, 85, 89, 81, 82 की बहुत सारी डीएमसीज देखी हैं, ठीक है। और सीएसएस में ये याद रखिएगा, 89 दो सब्जेक्टों के नंबर होते हैं, दो कंपल्सरीज के नंबर होते हैं, तो किसी एक ऑप्शनल में अगर आपके 80s में मार्क्स आ गए तो बहुत बड़ा एडेड वो होते हैं। बट और फिर सबसे एक और इस सब्जेक्ट का फायदा कि डाइवर्सिटी बहुत है सब्जेक्ट में। डाइवर्सिटी से मेरा मकसद क्या है? डाइवर्सिटी से मकसद ये है कि एक तरफ है इसी सब्जेक्ट के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट, जहां मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी, हम जब पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सेशन करेंगे, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल, मैक्स वेबर, इन सब के बारे में, जो ब्यूरोक्रेसी का पाइनियर है कॉन्सेप्ट का, वो मैक्स वेबर है, तो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी, दैट्स द थ्योरेटिकल पार्ट। फिर 4-5 उसके अलावा थ्योरीज हैं, कम्युनिटेरियनिज्म, डिसेंटेड थ्योरी, लिबरलिज्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 2 सेक्शंस तो इस सिलेबस के टोटल, ये जो 2 मैंने बताए, एक ब्यूरोक्रेसी वाला और एक ये, इसमें हम थेरिस्ट्स को पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी, it's not loaded with theory। और जिन लोगों को थ्योरी पसंद है उन लोगों के लिए थ्योरी भी है। जिन लोगों को थोड़ा सा people who like empirical stuff, like how this theory is applied, तो 70% ये जो कोर्स है, it's all applied stuff, things that we see in our daily life। जिस वजह से मैं ये कहता हूं कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको, if you're somebody who knows Pakistan's policy issues और आपने पाक अफेयर्स की भी अच्छी तैयारी की है, तो हम जाके 60 to 70% ये सिलेबस, ये बगैर तैयारी के भी गवर्नेंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम को, क्योंकि इसमें जो सारी पॉलिसी डिस्कशंस हम करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में सुनते हैं, वो सारी पॉलिसी इश्यूज इसके अंदर जो एम्पिरिकल इश्यूज हैं, अप्लाइड इश्यूज हैं पाकिस्तान के पॉलिसी इश्यूज, वो हम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द सिलेबस is about Pakistan's governance system। पाकिस्तान अफेयर्स में सबने गवर्नेंस पढ़ रखी है, सबको पता है गवर्नेंस के इश्यूज क्या है पाकिस्तान में, ठीक है। उसमें पूरा पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर, के कैबिनेट का क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का क्या काम है, व्हाट डज द प्रेसिडेंट्स ऑफिस डू, व्हाट डज द फेडरल सेक्रेटेरिएट डू, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स क्या करते हैं, ये लोग पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक बहुत लार्ज पार्ट ऑफ द सिलेबस वो है। एक पार्ट ऑफ द सिलेबस है जिसमें हम इसको डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान का जो सिविल सर्विस रिफॉर्म है, अब ब्यूरोक्रेसी के साथ वो डिस्कस होता है। अगेन सिविल सर्विस रिफॉर्म पाकिस्तान अफेयर्स का पूरा टॉपिक है, जो करंट ऑनगोइंग डिबेट है पाकिस्तान में सिविल सर्विस रिफॉर्म के ऊपर। एक पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो 18th अमेंडमेंट और एनएफसी के ऊपर है। अब अगेन अक्सर उसके ऊपर सवाल भी बल्कि 18वीं तरमीम और एनएफसी के ऊपर आ जाता है, और डेवोल्यूशन के ऊपर सवाल आता है। अगेन पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक, और एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ाया जाता है। सो माय होल पॉइंट इज कि जिन लोगों को ये हाउ पॉलिसीज आर अप्लाइड इन पाकिस्तान, उन चीजों के अंदर भी इंटरेस्ट है, तो वो भी इस कोर्स को एंजॉय करते हैं। और जिनको थ्योरी भी पसंद है, अब जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज वेरी थ्योरेटिकल, उसमें अप्लाइड नहीं है। यहां पे हम एग्जैक्ट जो पाकिस्तान के इदारे एज दे एग्जिस्ट ऑन द ग्राउंड, उनके नाम लेके उनको सिलेबस में शामिल किया गया है। ये बड़ी डिफरेंट बात है, ठीक है। और उनका चूंकि नाम लेके उनको सिलेबस में शामिल किया गया इदारों को, तो वो इदारे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, रोज पढ़ते हैं अखबारों में भी। तो एक वो सॉर्ट ऑफ फैसिनेशन ऐड हो जाती है कोर्स में, यू कैन रिलेट टू दोज इंस्टीट्यूशंस। फॉर इंस्टेंस, मैं इस बात से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं कोई किसी सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि द स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो आप स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस के वर्ड से आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि किन इंस्टीट्यूशंस की बात होगी। पर अगर उस सिलेबस में लिख दिया जाए डायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड द प्रेसिडेंट हाउस, तो आप उन इदारों से रिलेट करोगे। यू नो व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इज, यू नो व्हाट इट डज, और इफ यू डोंट नो व्हाट इट डज, यू वुड वांट टू लर्न व्हाट इट डज। So it adds fascination to the course. So it's a very sort of applied, pragmatic course. तो इसलिए ये दोनों तरह के लोग इसके अंदर बाअसर हो सकते हैं।
they can be effective. Both types of people who like theory and people who like applied stuff as opposed to theory. अच्छा, किताब का किसी ने पूछा है, ये भी मैं हमेशा पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये बात वाजे कर देता हूँ कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ ओवर द काउंटर बुक्स. अच्छा, या अब दो बातें हैं इसमें. आप लोग हर सेशन में किताब का पूछते हैं, मैं किताबें रिकमेंड क्यों नहीं करता वो मैं बताता हूँ. देखिए, जो ओवर द काउंटर बुक्स है उनका एक फायदा है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान है. ओवर द काउंटर से मतलब कि जो ये हमारे CSS वाले पब्लिशर, जिनको मैं कहता हूँ, लाहौर में एक बहुत बड़ी किताबों की मार्केट है जहाँ सारे एशिया की किताबें छपती हैं, उर्दू बाजार. तो इनको मैं कहता हूँ उर्दू बाजार पब्लिशर. ये डोगर वोगर, इल्मी शिल्मी और ऑल ऑफ दीज पब्लिशर्स. अब ये क्या करते हैं, मेरे पास भी ये रोज आते हैं, सर फलानी CSS की किताब लिख दे, फलानी लिखते हैं, और उसमें वो मुझे टाइम देते हैं, सर 15 दिन में बुक लिख दे, 20 दिन में बुक लिख दे, क्योंकि उन्होंने कंटेंट डेवलप नहीं करना होता, कंटेंट को सिर्फ कंपाइल करना होता है. ये सारी कंपाइल्ड बुक्स हैं. अच्छा, और इनका फायदा ये है, अब ये क्या करते हैं, इनके ऑथर्स जो हैं जिन्होंने कंपाइल की होती हैं किताबें, वो इंटरनेट से CSS का सिलेबस देखते हैं, हर इंडिविजुअल टॉपिक को गूगल करते हैं, उस पर जो अच्छी सोर्स मिलती है उसको एक वर्ड फाइल पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पब्लिशर उसको प्रिंट कर देता है. ठीक है, इन्हें मैं कहता हूँ जिस तरह ओवर द काउंटर ड्रग्स या ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है ना, ये ओवर द काउंटर बुक्स है, जिनके लिए आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी दुकान पे जाएं, सामने उन्हें कहें जी ओवर द काउंटर जी CSS की फलानी किताब दे दें, उसके पास हर पब्लिशर की पड़ी होगी, कोई भी आपको उठा. You don't need to do any research for it. You don't need to pick an author जिसका काम आपको पसंद है, जिसकी theories आपको पसंद है, so on and so forth. आपने सिर्फ जाना है और ओवर द काउंटर ये किताब खरीद लेनी. अच्छा, एक इसका फायदा, तो इनमें जो ये चीजें होती हैं वो कुछ यूनिक नहीं होती, कोई घिसी पिटी चीजें. अक्सर इन्होंने सोचे समझे बगैर इंटरनेट से चीजें कॉपी पेस्ट कर ली होती, तो समटाइम्स दे वुड गिव यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. तो ये डेंजर इसके साथ बहुत बड़ा है. दूसरा एक सबसे बड़ा इशू ये है कि इन ओवर द काउंटर बुक्स का हर बंदे के पास चूंकि एक्सेस होता है, तो CSS एक कंपेटिटिव एग्जाम है. आपने खाली ठीक नहीं लिखना, आपने बाकी लोगों से बेहतर लिखना है. तो अगर आप वही इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं जो इन किताबों में है, जो हर बंदे की जिन किताबों तक एक्सेस है, तो व्हाट इज द यूनिक थिंग दैट यू आर पुटिंग ऑन पेपर. तो ये दो बड़े डिसएडवांटेजेस हैं. लेकिन एक एडवांटेज भी है कि अपने नोट्स जब आप इंटरनेट से बनाते हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज सर्च करेंगे, तो जो उसमें आप टाइम वेस्ट करते हैं वो उन्होंने एक 250-300-400 रुपए की किताब के अंदर ऑलरेडी वो टाइम एक ऑथर ने आपके लिए लगा दिया है, और अब आपको स्टार्ट करते वक्त हर चीज एक जगह पे मिल जाएगी. तो हाँ, इस हद तक ये इसलिए मैं कहूंगा कि ओवर द काउंटर बुक्स ये आपको यूटिलिटी जरूर देती हैं कि जब आप CSS में जंप करते हैं और स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये किताबें आपको सारा सिलेबस जो कि एक जगह पे वो ले आती है, ये छोटी सी 150-200 सफ़ों की बुक होती है, तो आप उसको जरा यू कैन गो थ्रू द बुक एंड यू कैन लुक एट द एंटायर सिलेबस और किस तरह चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है. स्पेशली जब आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो उसमें ये किताबें जरूर आपको हेल्प करती हैं. लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि बाद में जब आप आए तो अपने नोट्स बनाएं हर सब्जेक्ट के, सबसे बेहतर वही होता है. या अगर आप यहाँ नोवा वगैरह में क्लास ले रहे हैं तो फिर टीचर्स के साथ आप नोट्स डेवलप करें व्हाइल यू आर इन द क्लास. अच्छा, नेक्स्ट चीज ये है कि जो दूसरी किताबें हैं, अब जो ओवर द काउंटर नहीं है, उनकी मैं बात करता हूँ. अब याद रखिए कि जो आपकी वेस्टर्न ऑथर्स की जो अच्छी किताबें हैं, हर फील्ड के अंदर जो बड़े थेरिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च लिखी होती है, अपनी रिसर्च. अब वो उस पूरे डिसिप्लिन के ऊपर किताब नहीं होती अनलेस इट्स अ टेक्स्ट बुक. हर रिसर्चर ने अपने थ्योरी, जो उसकी रिसर्च थ्योरी है, उसकी उस रिसर्च थ्योरी की फाइंडिंग्स, उसकी प्रोपोजिशंस, उसके ऊपर किताबें किसी न किसी स्पेसिफिक मखसूस टॉपिक पे पूरी किताब लिखी होती है. तो उस तरह की किताब, पूरी किताब पढ़ के सिर्फ आप एक टॉपिक कवर करते हो, इट्स नॉट वर्थ इट. तो वो किताबें भी नहीं की जा सकती. अच्छा, जो वेस्टर्न ऑथर्स ने टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं, जो एक सब्जेक्ट, लेट्स इमेजिन किसी ने एंथ्रोपोलॉजी की टेक्स्ट बुक लिखी है जो पूरा एंथ्रोपोलॉजी कवर करती है, तो उसने एंथ्रोपोलॉजी की टेक्स्ट बुक तो लिखी, पर क्या वो एंथ्रोपोलॉजी की टेक्स्ट बुक CSS के सिलेबस के मुताबिक लिखी गई थी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज़ इट्स रिटन बाय अ वेस्टर्न ऑथर. तो वो भी आपके लिए कारामद नहीं है.
या तो फिर आपके पास इतना वक्त हो कि आप उस तरह की 4-5 किताबें उठाएं, हर एक में से देखें कि सीएसएस के टॉपिक्स किस किताब के साथ मैप होते हैं, उसमें से जो जो टॉपिक्स हर बुक में से मिलते जाते हैं उनसे आप अपने नोट्स बनाते जाएं, या तो आप ये करें। तीसरा हल आपके पास यह है कि जिस तरह अभी मेरी क्लास है, तो मैंने चूंकि वो एफर्ट आप लोगों के लिए की हुई है, तो आप मेरे पे रिलाई करें नोट्स के लिए, और मैं जब हर टॉपिक के आपको नोट्स देता जाऊं तो उनसे एंड पे आपकी एक पूरी बुकलेट बन जाएगी, विच शुड बी इनफ। उसके अलावा अगर आपको मेरे नोट्स पे लगता है कि किसी टॉपिक में कोई डेफिशिएंसी है, तो देन यू हैव गूगल, आप ऑनलाइन जाएं, जो सबसे ज्यादा सीएसएस के लिए रिकमेंडेड चीज है, जो आपको आर्टिकल पसंद आता है उसको पढ़ें। तो इसलिए किताबों पे रिलाई मत करें जब तक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, या पहले 5-10 दिन जब एक सब्जेक्ट में जंप करते हैं तो उस वक्त जरूर ये किसी ओवर द काउंटर बुक देख लें, वरना आपको सीएसएस के लिए एटलीस्ट ये सिर्फ मिथ है कि यू नीड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। हाँ, एक इस मिथ को भी वो कर देते हैं कि किताबें आपको सीएसएस के लिए जनरल किताबें और बुक्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट के अंदर जो किताबों के आपने रेफरेंसेस जिन 5-7 किताबों को देने उनको पढ़े मत, सिर्फ आप गूगल जाके चेक कर लें कि उस किताब का ओवरऑल थीसिस या कंक्लूजन क्या है, सिर्फ उसको आपको एज ए रेफरेंस जरूरत है। किताब पढ़ने की सिर्फ उस इंसान को जरूरत है जिसका एक्सप्रेशन डेवलप नहीं हुआ। सो आई कम बैक टू द सेम थिंग, जितनी ज्यादा आप एक्सेसिव रीडिंग करेंगे आपका एक्सप्रेशन डेवलप होगा। तो किसी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए किताबें मत पढ़ें, अगर आप जनरली एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए किताब पढ़ना चाहते हैं तो फिर जरूर पढ़ें। तो और इस सब्जेक्ट में जैसे कि मैंने कहा, गवर्नेंस में आपको जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो सफिशिएंट होंगे। उसके अलावा अगर किसी किताब को मैं रेफर करूंगा, जैसे कि आप अभी मैं पेज के बारे में बताया नहीं है, वो भी मैं इंट्रोडक्शन में यूजुअली बताता होता हूँ। मेरा एक पेज है फेसबुक पे, GAPP for CSS gap for CSS by Asad Ijaz Bhatt, which is my name, and I write Ijaz with an E. मैंने भेज दिया इधर, ये देख लीजिए, मैंने टेक्स्ट भी कर दिया। इस ग्रुप के ऊपर मैंने कुछ किताबें अपलोड भी की हुई हैं, वैसे तो वेस्टर्न ऑथर्स की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो यू वांट टू लुक एट देम। और मैंने टॉपिकल नोट्स भी अप किए हैं। खाली मेरे नोट्स हैंड रिटन तो है ही है, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट्स, आईएमएफ के डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रिपेयर करते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप लोगों के पास इतना एम्पल मटेरियल होगा कि आपको किताब की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलें, अजान हो गई है, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन जी आप किताबों के रेफरेंस दीजिए, रिपोर्ट्स के रेफरेंस दीजिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के रेफरेंस दीजिए, लोगों के नामों से रेफरेंस दीजिए, कोटेशंस लिखिए, ये नहीं कुछ भी रेफर कर सकते हैं आप। रेफरेंसेस ऐड वैल्यू, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी, ये जो 10 से 12 पे जाने वाली बातें हैं, 10 नंबर से 12 नंबर पे, उसमें रेफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, हेडिंग्स कितनी डालते हैं, सब हेडिंग्स कितनी डालते हैं, बीच में रेफरेंसेस कितने डालते हैं, यही तो वो सफर है जो 10 से 12 मार्क्स की तरफ हमने करना है। वरना कंटेंट तो सारे लोग, तो बेसिक कंटेंट है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर गवर्नेंस का सवाल आता है तो किसको कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, जिसने ये कोर्स पढ़ा है, डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस, हर सीरियस कैंडिडेट को वो कंटेंट आता होगा। आप लोग इस क्लास में इस वक्त 60-65 लोग हैं, सबने एक ही टीचर से पढ़ा हुआ है, सबको एक ही नोट्स मिले हैं, तो आप सारे एक ही कंटेंट लिख रहे होंगे या मिलता जुलता कंटेंट लिख रहे होंगे, अपने अपने एक्सप्रेशन में लिख रहे होंगे, तो सबको 10 नंबर दे देगा एग्जामिनर। तो आप लोगों में से फिर कम्पिटिटिव एग्जाम है, आप में से ज्यादा ऊपर कौन आएगा? वो जिसने उसी असद इजाज भट्ट के नोट्स को, असद इजाज भट्ट की क्लास की जो कंटेंट आप लोगों ने लिखा, उसी को जो बेहतर प्रेजेंट करेगा। कंटेंट सबका सेम है, और बेहतर प्रेजेंटेशन में ये है कि जिसने रेफरेंसेस ऐड किए होंगे, जिसने हेडिंग्स, आंसर का स्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो वो 10 की बजाय 12 मार्क्स ले लेगा। तो ये छोटी, और इन्हीं को मैं स्लाइड एडजस्टमेंट्स कहता हूँ, तो उसमें रेफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी 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 बिल्कुल, आई वुड एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। तो वो जैसे जैसे आप लोग भेजते जाते हैं, मैं विद इन सेकेंड्स एक्सेप्ट करता जाता हूँ। जी, लेट्स टेक अ ब्रेक। शायद 10 मिनट से मुझे ज्यादा लग जाए, 10-15-18 मिनट, एंड देन विल कम बैक, और वापस आके फिर हम गवर्नेंस की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली उस पे कोर्स पे आते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन। थैंक यू जी, हेलो एवरीवन।
let's reconvene and start directly, without further ado, start directly with our syllabus. Okay, so in the second half of our first session today, I planned to discuss two important topics. One is this. One is of course the definition of governance, and the second is this concept of governance and some characteristics of the term governance. So let's begin with a definition. But before we get down to a formal definition, let me explain to you what this concept of how I understand governance and what governance is. Basically, आप ये रोज टर्म सुनते होंगे कि वो चीज हो रही है तो बैड गवर्नेंस है, ये गलत चीज हो गई तो गवर्नमेंट गवर्न नहीं कर सकी, ऐसा हुआ, गवर्नमेंट ने 12 मिलियन फैमिलीज तक पैसे पहुंचा दिए कोरोना के टाइम्स पे, तो बहुत अच्छी गवर्नेंस हुई. प्लास्टिक बैग्स इस्लामाबाद के हर स्टोर से बैन हो गए, तो बहुत अच्छी गवर्नेंस. क्लाइमेट गवर्नेंस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कर दी. गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट कर पा रही, तो गवर्नेंस बहुत बुरी हो गई, and so on and so forth. So put very, very simply, governance is the implementation of public policy, and we'll get down to what public policy is. लेकिन सबसे आसान तरीका गवर्नेंस को समझने का ये है कि it is an all-encompassing term that includes everything what governments are supposed to do. And the government has certain instruments through which it governs. For instance, एक नई हुकूमत आती है पाकिस्तान में, वो नई हुकूमत आके अपनी रिट कैसे एस्टैब्लिश करेगी? हाउ वुड इट टेल its constituency that we are the ones who would govern? हर हुकूमत के पास certain tools होते हैं जिनके थ्रू वो गवर्न करती है. एक नई हुकूमत आती है तो उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स होते हैं जिनके थ्रू which are that sort of bridge or that connect between the people, which is their constituency, and the government itself. That is how a government governs. जैसे पहला टूल क्या है? What is the first instrument through which governance happens? Or how does governance happen? पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है? लॉ. जब गवर्नमेंट आके लॉ इंप्लीमेंट करना शुरू करती है तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाता है that this is the government. This is who would now govern us. तो गवर्नमेंट अपनी रेट एस्टैब्लिश करती है थ्रू द लॉ, by implementing the law, and the law is the first instrument through which the government governs. इसकी एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे फॉर इंस्टेंस आपके ट्रैफिक लॉज हैं, न्यू गवर्नमेंट कम्स इन और वो कहती है कि फॉर मोटरसाइकिलिस्ट्स अब हमने हेलमेट को लाजिम कर दिया. एक गवर्नमेंट ने नया कानून बना दिया कि आप हेलमेट पहन के ही मोटर बाइक चला सकते हैं. उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने गवर्न किया through an instrument called the law and made a new law incumbent upon the people. उससे क्या हुआ? गवर्नमेंट की रेट भी स्टैब्लिश हो गई, कानून भी इंप्लीमेंट हो गया और गवर्नमेंट ने गवर्न भी कर लिया. उससे शायद गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्टिव उस गवर्नेंस के थ्रू अचीव करने की कोशिश की हो उस कानून के थ्रू. सो व्हाट द गवर्नमेंट डिड वाज दैट इट मेड अ लॉ, then implemented the law, and through that law it achieved a certain objective. Let's imagine that objective was reducing the number of fatal accidents. ये एक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है, आपने डेथ्स को रिड्यूस किया, एक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट ने
अचीव किया बाय imposing this law of wearing helmets on the people, right? अब ये तीनों जो चीजें थी, the process of making this law, of passing this law, and then implementing this law, and then mobilizing the states resources to implement the law. Mobilize किन resources को आपने किया? आपने ट्रैफिक पुलिस को कहा कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप ये लोग हेलमेट चेक करेंगे. आपको शायद ये भी मोबिलाइजेशन करनी हुई हो इस प्रोसेस में कि आपके मुल्क में इतने हेलमेट्स ही ना हो, तो जो एजेंसीज या इंडस्ट्रीज हेलमेट्स को इंपोर्ट करती है, स्टेट ने गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया हो, हेलमेट इंपोर्ट हो मुल्क में, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मास्क पहनने की कोरोना के दरमियान स्टेट ने तब पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी को इम्पोज किया जब मुल्क में उतने मास्क पहले प्रोक्योर हो चुके थे, उसके बाद वो पॉलिसी बनी. तो स्टेट ने पहले प्रोक्योरमेंट, तो क्या मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज को स्टेट ने मोबिलाइज किया, जिसमें हेलमेट से एक रिसोर्स है, ट्रैफिक पुलिस से एक रिसोर्स है. सो दे मोबिलाइज द रिसोर्सेज एंड देन इम्प्लीमेंटेड द लॉ. वंस द लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड, देन ऑफ कोर्स फिर उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वाज आल्सो डन बाय द गवर्नमेंट. तो यहां पे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्या इस्तेमाल हुआ? लॉ. दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में, ये मास्क वाली एग्जांपल में बता दिया, इज अ पॉलिसी. एनी पॉलिसी दैट द स्टेट मेक्स, आपकी हेल्थ पॉलिसी, आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बनाने से उसको इंप्लीमेंट करने तक सारा काम इज गवर्नेंस. ऑल ऑफ दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. अच्छा, लेकिन हम उसको कहते हैं implementation of public policy governance को, but that's a very narrow definition of governance. There can of course be a broader definition. मैं broader definition भी अभी लिखवाऊंगा. अच्छा, law, policy, तीसरी चीज लिखिए, regulations. Now the government governs through law, which is the first instrument. It governs through policy, which is the second instrument. It also governs through regulations. Now what are regulations? Regulations वो काम है जो government licenses issue करती है, sanctions issue करती है for detractors. जो भी बंदा डिट्रैक्ट करता है किसी लॉ, तो गवर्नमेंट एक तो थ्रू इट्स ओन ministries and its own autonomous bodies and subordinate offices of the ministries, like various organizations of the government, it is making and implementing public policies. Then through various law enforcement agencies, it is implementing the law. And of course, the judiciary has a very large role to play in that. The third thing which a government does is, of course, through its regulatory bodies, it is regulating certain sectors of the economy. तो उसमें regulation, जैसे कि for instance SECP है, Securities and Exchange Commission of Pakistan. अब वो regulate करता है कि सारी best practices क्या होंगी आपकी stock markets के अंदर. स्टॉक मार्केट्स के अंदर ब्रोकर्स का क्या रोल है वो भी डॉक्यूमेंटेड है. ब्रोकर्स रजिस्टर कैसे होंगे वो भी डॉक्यूमेंटेड है. उनको लाइसेंस भी वही रेगुलेटरी बॉडी इशू करेगी, वो भी डॉक्यूमेंटेड है. उनका लाइसेंस किन किन चीजों पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वो भी रेगुलेटेड. पेमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो बताता है कि किन टीवी चैनल्स को लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस की फीस क्या होगी, उनके कंडीशंस क्या हैं, किस किस्म का कंटेंट वो प्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस्म का नहीं कर सकते. इन सब रेगुलेटरी बॉडीज का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन्होंने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना होता है अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस. अगर कोई बुरा मलिशियस कंटेंट शो होगा टीवी पे तो तब भी कंज्यूमर इफेक्ट हो रहा है. अगर स्टॉक मार्केट्स मिस इन्फॉर्मेशन देंगी तो जो स्टॉक्स लोग खरीदते हैं आप और मेरे जैसे, वो इफेक्ट होंगे. तो जिस जिस सेक्टर के अंदर एक रेगुलेटरी, ऑयल सेक्टर है उसमें ओग्रा है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज, वो ऑयल की प्राइसेस और टैरिफ्स को रेगुलेट करती है. ऑयल कंपनीज को लाइसेंसेस भी इशू करती है.
पेट्रोल स्टेशंस को लाइसेंसेस इशू करती है. आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स. तो ऑगरा अब जो तो तीसरी जो गवर्नमेंट की चीज है वो है, गवर्नमेंट का जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो है रेगुलेशन. तो 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये जिनके थ्रू गवर्नमेंट्स गवर्न करती हैं. यहां तक किसको बात नहीं समझ आई तो मुझे मैसेज कीजिए. थर्ड इज रेगुलेशंस. अगर आपको नाम ही नहीं अहमद जवाद साहब समझ आया तो जो मैंने इतनी लंबी मिसाल दी है वो तो फिर नहीं समझ आए होगी आपको. अभी पॉलिसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स पॉलिसी के बारे में है. अंग्रेजी जुबान में कहते हैं होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस. अभी पकड़ के रखें, जरा परेशान ना हो, अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा. सर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये एज इंस्टीट्यूट्स थ्रू लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू एस्टैब्लिश होते हैं ना. सॉरी बिल साहब, आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन, यू नीड टू रीफ्रेज इट. लॉ पॉलिसी, ओके. No, these are not instruments of the government, Rima Siddiqui. These are instruments through which the government governs. So, instrument that the government uses to govern. These are not instruments of the government. The second one is policy, yes. Public policies, yes. No. Implementation of public policy is governance itself. मैं ये explain कर रहा हूँ कि instrument क्या है. Law है instrument, public policy instrument और regulations है instrument. Regulators are part of the government, but they are usually you could use the term independent, but basically they're part of the government. इसके independent तो नहीं कहेंगे, they're usually autonomous bodies. हम उसके लिए autonomous का word use करते हैं. The government establishes regulatory bodies, of course, but then they are established as autonomous bodies. So by autonomy, I mean that they can make their own rules and they can, for their internal governance, they can make their own rules. Like, for instance, if they're hiring new people, they don't have to talk to their parent ministry and then hire people. तो जो autonomous का status है उसकी बहुत ज़्यादा different legal चीजें हैं उसमें, लेकिन you don't need to get into that कि autonomous का मतलब क्या होता है. But for आप समझ ले कि they are autonomous in their own decision making, but they are still part of the government. हर इदारे के अपने इंटरनल नबील साहब रूल्स होते हैं. अपनी इंटरनल गवर्न जो उस इदारे को चलाने के लिए अपने रूल्स होते हैं. उनको हम लॉज एंड पॉलिसीज नहीं कहते, वो उस इदारे का अपना रूल्स है. हर सरकारी इदारा अपने रूल्स बनाता है जिसके थ्रू उस इदारे को चलाया जाता है. और एक रूल्स वो हैं जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने पूरी गवर्नमेंट के लिए बनाए हैं. SBP regulates monetary policy, but SBP is not a regulatory body per se. Of course, it performs the regulatory function, absolutely yes, but SBP as a whole is not a regulatory body. There's only one part of SBP which does regulations. The legislature makes laws for the country, every ministry department makes rules for their own. Yeah. So there's a difference between law and policy. What's the difference? Let's get down to business again. मैंने जितने अभी सवाल बाकी होल्ड कर लीजिए, फिर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा क्वेश्चंस लूंगा. What is the difference between law and public policy? यही कुछ differences हैं. जिस तरह अभी आपने बात की, leads me to that. Law और public policy का सबसे बड़ा difference ये है कि एक तो deviance from the law is punishable by law itself. Deviance from a public policy per se, if it has not got legal backing, is not punishable by law. ये बहुत important difference है. Secondly, public policies are only meant for
a certain type of people. इस बात से मेरा क्या मतलब है? Is only meant for specific people. जैसे फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर पॉलिसी है, तो जो लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो उनको तो इम्पैक्ट करेगी, लेकिन आपको और आपके और मेरे ऊपर घर बैठ के हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ अधेरेंस नहीं करनी. वी डोंट हैव टू अधेयर टू पाकिस्तान एग्रीकल्चर पॉलिसी. पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी है तो वो आपने और मैंने अधेयर नहीं करनी. पर पाकिस्तान की जो ट्रैफिक लॉ है फॉर इंस्टेंस, वो आपने मैंने हर पाकिस्तानी ने विदाउट एनी एक्सेप्शंस अधेयर करना है, राइट? तो पहली तो बात थी पनिशमेंट की. दूसरी बात है कि लॉज आर यूनिवर्सल, पब्लिक पॉलिसीज डू नॉट हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. इसको आप इस तरह से फ्रेज कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसीज डू नॉट हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड रूल की तो मैंने बात ही करनी की है. वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज एंड पॉलिसीज. अब सवाल थोड़ी देर प्लीज रोक दीजिए. प्लीज स्टॉप. अभी कमेंट्स ना चैट में दीजिए बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स मी. वो पॉपअप होता रहता है नोटिफिकेशन, इट डिस्ट्रैक्ट्स मी. सो लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी का डिफरेंस ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं. दैट लॉज हैव यूनिवर्सल. आपकी स्टेट ने एक लॉ बना दिया तो उसकी एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन बन गई. एवरीवन हैज टू अडहेयर बाय दैट लॉ. नोबडी इज अबव द लॉ and nobody could be saved from the law. सबके ऊपर वो अप्लाई होगा. Same as of course not the case with public policies. वो उन्हीं लोगों पे पब्लिक पॉलिसी अप्लाई होती है जिनके लिए वो बनाई गई है. अच्छा, अहम बात ये है, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑफ कोर्स लॉ की इंप्लीमेंटेशन भी थ्रू गवर्नेंस हो रही है और पब्लिक पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन भी थ्रू गवर्नेंस ही होती है. और ये सारे गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट अपनी रेट एस्टैब्लिश करती है और जिनके थ्रू गवर्नमेंट गवर्न करती है. हु इज द गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द स्टेट? अब ये भी एक अहम डिफरेंस है, इसको भी समझिए. अभी मैं सिर्फ आई एम जस्ट सेटिंग द ग्राउंड फॉर दिस कोर्स. अब गवर्नेंस को हमने डिफाइन करते हुए कहा कि इट्स एक informal definition हमने discuss की कि it is everything that a government does, all encompassing kind of thing. Yeah, it's an all encompassing kind of concept which includes everything that a government does, which is governance of course. लेकिन who is the government? और हमने ये भी देख लिया कि गवर्नमेंट किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो सब चीजें करती है जो कि गवर्नमेंट करती है. पर गवर्नमेंट है कौन और स्टेट कौन है? इन दोनों में फर्क क्या है? Government is an entity that manages the affairs of a state. Affairs में आप सब डाल दें, economic, social, political, so on. Government is an entity that manages the affairs of a state. इसमें आप ये भी डाल सकते हैं for a certain period of time. लेकिन उन कंट्रीज में विच आर मोनार्किक, इसको मैं ये भी कह सकता था कि गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड एंटिटी दैट मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ अ स्टेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. पर मैंने इसमें इलेक्टेड और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसलिए निकाल दिया कि थिंक अबाउट द मुस्लिम वर्ल्ड फॉर इंस्टेंस. वहां गवर्नमेंट तो है लेकिन ना वो इलेक्टेड है, ना वो 5 साल के लिए आई है या 4 साल के लिए आई है. सदाम हुसैन वाज इन इराक फॉर 22 years, राइट? मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बाद में आ गई, पर उससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ वाज रूलिंग पाकिस्तान. ही वाज नॉट इलेक्टेड एंड ही वाज देयर फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. वो बाद में 2002 में इलेक्शन, तो जब भी पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप्स हुई तो एक इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिक्टेटरशिप आई और वो इलेक्टेड भी नहीं. तो आप चाहें तो पहले वाली बात समझ लीजिए, चाहे तो दूसरे वाली, बट आप अपने लफ्जों में इसको जैसे मर्जी लिखना चाहें लिखिए, दोनों बातें ठीक हैं. लेकिन द आइडिया इज दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अच्छा, तो गवर्नमेंट इज जस्ट दोज पीपल हु रन द स्टेट, is a collection of those people who run the state.
इसलिए एक गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये भी है कि द गवर्नमेंट इज द ट्रेजरी बेंच ऑफ द पार्लियामेंट। वो लोग ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं पार्लियामेंट की डिवीजन। दुनिया में हर पार्लियामेंट की डिवीजन होती है, एक तरफ ट्रेजरी बैठती है जिसको यानी गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन। तो सरकार को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि इट इज जस्ट द ट्रेजरी बेंच ऑफ द पार्लियामेंट। ऑन द अदर हैंड, अ स्टेट जो कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, इज लाइक अ वर्चुअल रियलिटी, comprises of three branches or three pillars. पहला स्टेट का पिलर क्या है? जुडिशरी। दूसरा, और ये मैं किसी ऑर्डर या सीक्वेंस में नहीं बता रहा, नॉट इन एनी सीक्वेंस ऑफ पावर। अगर पाकिस्तान में सीक्वेंस ऑफ पावर में मैं ये बताना शुरू हो जाऊं तो सबसे पहले तो फिर मिलिट्री आनी चाहिए। सो इट्स इन नो ऑर्डर और नो सीक्वेंस। सो जुडिशरी, legislature and executive. Judiciary, legislature and the executive. So legislature includes your parliaments, your parliament. Your upper house of the parliament is your Senate, the lower house of the parliament is your National Assembly at the federal level, and beneath that you have your provincial assemblies, Sindh Assembly, Cape. So this is your legislature. The main task of the legislature is to make laws or to review laws, to make laws, to enact legislation. Legislation is law. The main task of the executive branch of the government, जिसको हम bureaucracy भी कहते हैं, and so on and so forth, is to implement those laws made by the legislature. And the third branch of the government is the judiciary, which of course has to ensure through its decisions that the laws are being adhered with, and if there are any deviations from the law, the judiciary can then of course pass judgments to punish people, punish the deviants. जब ये तो बात होगी लॉ की। अच्छा, जो पब्लिक पॉलिसी है वो ओरिजिनेट होती है एग्जीक्यूटिव से। कानून तो ओरिजिनेट हो रहा है ना लेजिस्लेचर से। पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, बिल मेजॉरिटी ने पास कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दी और वो कानून बन गया। जो पब्लिक पॉलिसी है वो ओरिजिनेट होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फेडरल गवर्नमेंट में कहती है हमने हेल्थ पॉलिसी बनानी, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, इसमें दो बातें बड़ी अहम है। एक लॉ और पॉलिसी का दोबारा कनेक्शन को जरा गौर से समझिए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लीगल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लीगल बैकिंग चाहिए होती है। तो वो पॉलिसी ओरिजिनेट तो होती है एग्जीक्यूटिव से, कोई मिनिस्ट्री ओरिजिनेट करती है, लेकिन वो मिनिस्ट्री अपने मिनिस्टर को कहती है, हु इज आल्सो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कि आप इसको कानून की शक्ल देने के लिए इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दें। और क्या होता है कि वो पॉलिसी लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो उसको तश्कील तो आपने पब्लिक पॉलिसी की तरह दिया होता है, बट अल्टीमेटली इट फाइंड्स द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ and then it is implemented like a law, so then it becomes incumbent upon everyone to follow it. जिस तरह मैं आपको इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे विमेन एम्पावरमेंट बिल्स हैं। अब जितनी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जितनी पब्लिक पॉलिसी थी, पाकिस्तान जो जेंडर पॉलिसी थी, उसको हमने फिर औरतों के ऊपर जो मजालिम थे एंड उसको खत्म करने के लिए हमने उसको, स्पेशली पंजाब असेंबली ने जब 2016 में ये लेजिस्लेशन पास की, तो हमने उसको उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टू मेक इट इनकम्बेंट अपॉन द एंटायर एग्जीक्यूटिव, we sort of gave it the strength of the law. अच्छा, कुछ कवानीन ऐसे हैं कि पहले कानून पास होता है और बाद में उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। तो ये दोनों चीजें हैं।
तो ये पब्लिक पॉलिसी और लॉ के मैंने डिफरेंसेस तो पहले बताए, लेकिन ये दोनों का आपस में कनेक्शन है, और इनके कनेक्शन के थ्रू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का भी आपस में कनेक्शन बनता है, राइट? तो क्योंकि कभी एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाता है और बाद में उसको थ्रू द लेजिस्लेचर उसके लिए कवानीन चाहिए होते हैं, और कभी लेजिस्लेचर जो है कोई कवानीन बनाता है और फिर वो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट कर देता है कि इस कानून में से मुख्तलिफ पॉलिसीज आपको निकाल लेनी चाहिए, वो आप निकालिए. So that's the connection. And of course then judiciary has the role to play के it has to ensure के कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है और अपनी सही स्पिरिट में हो रहा है, और कानून की इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी का काम है. कानून को बनाना काम है लेजिस्लेचर का. ये तीनों ब्रांचेस ऑफ द स्टेट है, इनके ऊपर मुश्तमिल है स्टेट. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जैसे आपके मिनिस्टर्स हैं, अब जो आपका एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को आपने इमेजिन करना है दो हिस्सों में. एग्जीक्यूटिव का एक वो हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट का, जो कि नॉन इलेक्टेड है, और एग्जीक्यूटिव का एक वो हिस्सा है जो कि इलेक्टेड है. एग्जीक्यूटिव का जो हिस्सा नॉन इलेक्टेड है, वो है जो सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी है, एंड ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट, who are career officers, professionals who work for the government in various ministries at the federal level, in various departments in the provinces. All of these are part of the executive branch of the government. But these are non-elected people because ye elect hoke nahi hai. These are professionals. Then there are people who are part of the executive, who are performing executive functions, but they are elected people. वो कौन है? वो है जो आपके जैसे सारे वुज़रा हैं, मिनिस्टर्स हैं. अब all of them became MPAs and MNAs and became part of the provincial assemblies or your national assembly or your senate. And then they became head of a ministry. अब ministry क्या है? Is an institution of the executive branch of the government. और जब मिनिस्टर मिनिस्ट्री का हेड बन गया तो वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा बन गया. तो मुझसे अक्सर बच्चे पहले क्लास में ये सवाल पूछा करते हैं कि सर, जब एक इंसान मिनिस्टर बन गया है तो वो एमएनए भी तो है साथ, तो अब वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है या एग्जीक्यूटिव का? तो इसका जवाब ये है कि वो दोनों का हिस्सा है, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही का हिस्सा है. जैसे अगर पार्लियामेंट इन सेशन है, पार्लियामेंट 5 दिनों के लिए 4 दिनों के लिए इन सेशन होता है हर महीने या 2 महीने बाद, तो जब पार्लियामेंट 5 दिनों के लिए सेशन में है, फॉर दोस 4 days और फॉर दोस 5 days, these people will be part of the legislature. And for their ministries, their respective ministries, they are part of the executive. अच्छा, एक तीसरी तरह की भी लोग हैं इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की जगह, जो कि करियर ऑफिसर्स नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है, who do not hold permanent positions in the government. वो पॉलिटिकल लोग हैं, पर वो इलेक्टेड भी नहीं है. जैसे अक्सर लोग इलेक्शन हार जाते हैं, नॉन इलेक्टेड होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको इदारों के चेयरमैन, पॉलिटिकल पोजीशंस पे बिठा देती है, बाहर एम्बेसडर लगा के भेज देती है. तो वो सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट नाइदर आर दे परमानेंट मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है फॉर लाइफ. सो they're not even on a contract. They are holding a political position, but they are members of the executive and they are non-elected. तो वो एक तीसरी तरह के लोग भी हैं. तो इन 3 तरह के लोगों से पूरी एग्जीक्यूटिव आपकी बनती है. द करियर ऑफिसर्स, द प्रोफेशनल्स, जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, देन द लोअर स्टाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. उस लोग जो हुकूमत मिलके पूरी एग्जीक्यूटिव चलाते हैं. अब एक बात याद रखिएगा कि स्टेट की इन 3 ब्रांचेस में वो 70 से 80% सिर्फ एग्जीक्यूटिव के काम, जुडिशरी का कहीं तस्करा आ जाए या लेजिस्लेचर का आ जाए, बाकी ये सारा कोर्स जो है एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है. यानी व्हाट डज द ब्यूरोक्रेसी डू, एंड हाउ आर
the what is the, how do we plan to reform the civil service, so on and so forth. और इनकी ब्यूरोक्रेसी को चलाने की थेरीज क्या हैं, गवर्नेंस की थेरी क्या है, और गवर्नेंस मेजॉरिटी सारी गवर्नेंस कहाँ पे हो रही है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें कुछ गवर्नेंस जो हो रही है वो थ्रू द लॉ हो रही है, वहां पे लेजिस्लेचर का थोड़ा रोल है, या इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज में जुडिशरी का रोल है, बट द रेस्ट ऑफ इट इज जस्ट द एग्जीक्यूटिव। यहां तक अब बात किसको समझ नहीं आई? आई होप दैट आई मेड इट वेरी वेरी क्लियर। I hope that I made it very very clear. ये प्लीज ये it's not a politics class, ये लोगों के नाम वगैरह मत लें और एक पोस्ट लोगों की नाम पूछे। मैंने क्लियर कर दिया सारा, जो नॉन इलेक्टेड भी है मैंने उनकी भी बात बता दी है, तो आपको समझ आ जाएगी। बट लेट्स नॉट टेक नेम्स, वो हम नाम लेके क्लास के आखिरी 5 मिनट में ये करेंगे, सबका मजाक करेंगे। अभी तक समझ आ गई सबको? हैदर साहब क्या रिपीट करूं, बताएं, क्या नहीं समझ आया आपको? चल कोई बात। गवर्नेंस तो हैदर साहब मैंने अभी समझा ही नहीं, मैं तो गवर्नेंस पे आया ही नहीं। अभी तक जो मैंने बताया है उसमें से क्या नहीं समझ आया आपको? मैं तो गवर्नेंस पे आया ही नहीं, मैंने तो भी डिफाइन भी नहीं किया सही तरह से गवर्नेंस को। मैं तो अभी सिर्फ स्टेट स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। स्टेट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द गवर्नमेंट। एनीवेज, आप बाद में नोट्स को फिर कंसल्ट कीजिएगा, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द स्टेट स्ट्रक्चर, दिस इज, और स्टेट का कॉन्सेप्ट अगर एक दफा आपको समझ आ गया है तो स्टेट के जो मामला चलाती है एंटिटी, उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। और गवर्नमेंट 3 इंस्ट्रूमेंट से गवर्न करती है, और गवर्नेंस क्या है, इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पुट वेरी सिंपली। बट लेट्स कम टू हैदर साहब, ये सुनिए, अ मोर फॉर्मल डेफिनेशन। नोट्स मैं ही दूंगा हैदर साहब, मैं ही नोट्स दूंगा, यही ना चीज मैं दूंगा। मैं नहीं दूंगा तो आप लोग मेरे गिरबान पकड़ लेंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मुझे सड़क पे ले आएंगे, मुझे जान से मार देंगे। मैं क्यों नहीं दूंगा नोट्स, मुझे इसके पैसे मिलते हैं। मैं अगर आज की क्लास पढ़ाते पढ़ाते मैं मर गया तो मैं किसी की जिम्मेदारी लगा के मरूंगा कि आप लोगों को नोट्स दे दें और हुक्म करें। लेकिन मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मुझे कंप्लीट करने दें, मैं सब कुछ पूरा करके जाऊंगा, नोट्स वोट्स हर चीज देके जाऊंगा। ठीक है, चल कोई बात नहीं। टेक इट इजी, टेक इट इजी। जो मैं, आप लोगों का आज मेरे साथ फर्स्ट सेशन है, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है, आप नोट्स और इन चीजों की आपको, अगर मैं क्लास के फौरन बाद नहीं दूंगा तो 2 दिन बाद आपको मिल जाएगी, बट यू गेट एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट, नो वरी अबाउट इट, ठीक। और आपको अगर कोई चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप करके, क्योंकि मैं फिर उसमें सारी क्लास का टाइम जाया होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके जितने मर्जी सवाल पूछे, ठीक है। मैं अभी नंबर भी अपना शेयर कर दूंगा। सो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दीज 3 आवर्स, आई विल बी अवेलेबल आफ्टर दिस एज वेल। चलें जी, आगे चलते हैं। अब मुझे बिल्कुल भूल गया कि मैं कहां पे था। ओके, सो आई थिंक आई वाज एट वेयर, हाँ, डेफिनेशन पे गवर्नेंस की। ओके, सो लेट्स गेट डाउन टू द राइटिंग पार्ट। लिखिए जी गवर्नेंस की डेफिनेशन, हेडिंग दीजिए गवर्नेंस और मैं डिफाइन करता हूँ। Governance is the management of state resources. Governance is the
management of state resources through and for the efficient and effective and for the efficient and effective attainment of outcomes. ये एक लिखी है हमने जनरल डेफिनेशन, आगे हेडिंग दीजिए वर्ल्ड बैंक्स डेफिनेशन। अब डिफरेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नेंस को डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया। वर्ल्ड बैंक्स लिखिए, वर्ल्ड बैंक्स डेफिनेशन। ओके, सो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लिखिए गवर्नेंस की। World Bank defines governance as a method. World Bank defines governance as a method through which power is exercised in the management of a country's political power is exercised in the management of a country's political, economic and social resources, economic and social resources for development. अब वर्ल्ड बैंक भी वही बात कर रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। रिपीट कर दिया, वर्ल्ड बैंक भी यही बात कर रहा है। वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि स्टेट अपनी पावर एक्सरसाइज कैसे करती है टू मैनेज इट्स रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज तीन तरह के हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो बेसिकली स्टेट के पास, जो मैंने भी शुरू में डेफिनेशन लिखवाई, वो यही है कि स्टेट ने पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है, उसके थ्रू कुछ आउटकम्स, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक आउटकम्स अचीव करने होते हैं। और वो पब्लिक पॉलिसी स्टेट कैसे इंप्लीमेंट करती है? बाय मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेज। जो मैंने शुरू में कहा था ना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, के स्टेट के पास पुलिस है, स्टेट के पास मशीनरी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है जिसमें पुलिस भी आती है, स्टेट के पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, स्टेट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। उनके थ्रू, फिर उन इदारों के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू, तो उसमें एक है इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, एक है इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, एक है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर आपके हैं फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज। इन तीनों रिसोर्सेज के थ्रू आप अपनी पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हो। और पब्लिक पॉलिसी को क्यों इंप्लीमेंट करना है? क्योंकि आपने उसके थ्रू कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। जैसे शुरू में हमने ट्रैफिक लॉज वाली एग्जांपल से भी मैंने यही बात समझाने की कोशिश की थी कि स्टेट ने मोबिलाइज किया पुलिस को, स्टेट ने मोबिलाइज किया इंडस्ट्रीज को, उसके थ्रू स्टेट ने हेलमेट का जो कानून था या पॉलिसी थी उसको लागू किया, उसको इंप्लीमेंट किया बाय यूजिंग द मैनेजिंग स्टेट्स रिसोर्सेज और मोबिलाइजिंग द स्टेट्स रिसोर्सेज। और उसके थ्रू स्टेट ने इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंट करके आउटकम क्या अचीव किया कि जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं उनमें आप रिडक्शन ला सको, which was the development outcome that the state was trying to achieve. अच्छा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी एक डेफिनेशन गवर्नेंस की लिख लीजिए। फिर हम गवर्नेंस की इस टर्म इवॉल्व कैसे हुई की तरफ भी आते हैं। लिखिए,
United Nations Development Program. I think they gave this definition. World Bank ने दी थी 1993 में और UNDP ने दी भी है 97 में गवर्नेंस की डेफिनेशन. ये टाइमलाइन भी जरा गौर कीजिएगा 90s वाली. UNDP कहता है governance is the exercise of economic, political and administrative authority. Economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. It comprises the mechanisms, processes and institutions. It comprises the mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, articulate their interests, exercise their legal rights, comma, meet their obligations, and mediate their differences. अच्छा, प्लीज ये किया कीजिए कि आप में से कुछ लोग जो तेज लिखते हैं और फॉलो करते हैं, मेरी हर क्लास में ऐसे होता है कि वो साथ साथ चैट में भी कॉपी पेस्ट करते जाते हैं जो वर्ड पे बना रहे होते हैं. उससे फिर मुझे बार बार हमें क्लास को वापस नहीं लेके जाना पड़ता. वो चैट में आप कॉपी पेस्ट कर दिया करें साथ साथ, ताकि अगर किसी ने मिस कर दिया तो वो भी लिख लें वहां से. ठीक है, प्लीज समवन डू इट. जो तेज टाइप करते हैं या तेज जिनकी हैंड राइटिंग तेज है. और एक बात बताता चलूं, अभी तक मैंने जो आपको लिखवाया है, जी थैंक यू सो मच फातिमा हसन साहिबा, बहुत मैडम, बहुत शुक्रिया आपका. मैडम मनशा, डॉक्टर ब्रेशना और नवीद इकबाल साहेब, मैडम फरीहा और शोएब साहब, आप सब ये देख लें. ठीक है. अच्छा, ये प्लीज मैडम फातिमा, अगर आप ही तेज लिखती हैं या और जो लोग तेज लिखते हैं वो साथ करते जाइए इससे कॉपी पेस्ट. ओके, it will make things very easy for all of us. जो कॉपी पेस्ट करते हैं उनका अपना भी फायदा है, क्योंकि वो तो लिख चुके होते हैं, तो जब मैं रिपीट करता हूं तो उनका भी वक्त जाया होता है और इसमें उनका भी फायदा है जिन्होंने आहिस्ता लिखा है. एक बात याद रख लीजिए कि आप एक बात मीडिएट देयर डिफरेंसेस. जी, एक बात याद रख लीजिए कि आप अगर जिस स्पीड पे मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी राइटिंग उतनी तेज नहीं है तो आई गो बैक टू दैट कंसर्न अबाउट स्किल्स. हैंड राइटिंग तेज कीजिए और थकना नहीं है. 3 घंटे वहां लिखना है. हमारी 3 घंटे की क्लास है और इस क्लास में मैं ब्रेक्स के साथ लिखवाता हूँ. एक सफा लिखवाया, फिर मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, फिर 1-1.5 सफा लिखवाया. अगर आप थक रहे हैं, आपका स्टेमिना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप थक रहे हैं लिखते हुए, वहां तो रेस लगी हुई है. इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आपने 3 घंटे कॉन्टिन्यूअस लिखना है एंड एट अ ब्रिस्क पेस. तो अगर जो मैं लिखवा रहा हूं, अगर बार बार आपको रिपीट की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप लोग, वो लोग जिनको रिपीट की जरूरत है, वो हैंड राइटिंग तेज करें. अच्छा, एक मशहूर इस फील्ड में एक साहब हैं, उनका नाम है पीटर पियरी एंड पॉल हर्स्ट. PAULHIRST. उन्होंने भी गवर्नेंस को डिफाइन किया. ही ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड डेफिनेशन. तो पॉल हर्स्ट के नाम से वो डेफिनेशन लिखी.
जी जी, इंटरनेट के इश्यूज तो मैडम बहरहाल हैं। अच्छा, मंशा is a female name or a male name? Female name? I know both males and females with this name, Mansha. Female. Female. Yes, female. Okay. जैसे for instance, it's not necessarily a female name. जैसे पाकिस्तान के richest आदमी मियां मंशा, quite sure he's a male. Quite sure. Okay. Paul Hurst क्या कहते हैं? Governance can be generally defined. Governance can be generally defined as the means by which an activity is controlled or directed. Governance can generally be defined as the means by which an activity is controlled or directed. Such that it delivers an acceptable range of outcomes, such that it delivers an acceptable range of outcomes, such that it delivers an acceptable range of outcomes according to some established standard. According to some established standard. चलें, 3 definitions enough हैं. अब एक heading दीजिए, according to some established standard. अच्छा, अब आगे heading दीजिए, evolution of the concept of governance. इसमें मेरे नोट्स में आपको इसकी हिस्ट्री और टाइमलाइन मिल जाएगी, तो मैं एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं लिखवाऊंगा, तो मैं नोट्स आपको अभी प्रोवाइड करूंगा क्लास के एंड पे, उसमें से आपको ये मिल जाएगा. अच्छा, एक काम कर लीजिए प्लीज, कि हमारा एक है गवर्नेंस और पॉलिसी का ना व्हाट्सएप ग्रुप है. ठहरिए, मैं उसका यहाँ पे लिंक भेजता हूँ, मैं नोट्स वहां पे शेयर करूंगा आपसे फर्स्ट लेक्चर पे. एक सेकंड ठहरिए. और उन नोट्स में बहुत सारी बातें नहीं भी होंगी जो मैंने आपको लिखवाई हैं या एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि ये नोट्स हर बैच में अपडेट होते रहते हैं. तो वो पुराने एक बैच में मेरे स्टूडेंट ने अपने हाथ से लिखे हुए हैं, तो वही हम इस बैच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. एक सेकंड ठहरिए. गवर्नेंस, ओके ओके ओके. इस लिंक से अभी आप फौरी तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास के बाद में इसी ग्रुप में नोट्स शेयर करूँ. ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया यहाँ पे.
अच्छा, इस ग्रुप के ना आप मीडिया लिंक्स और डॉक्यूमेंट्स में जाइए, मीडिया लिंक्स एंड डॉक्स इस ग्रुप के। ज्वाइन नहीं हो रहा, ग्रुप फुल हो गया। ओ सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू ग्रुप। वेट, असल में मैं एक ही ग्रुप में इसलिए रखना चाह रहा था सबको कि मैं ग्रुप बना बना के गवर्नेंस के तंग आ गया हूँ, और अब मुझे याद भी नहीं रहता कि कौन सा ग्रुप कौन से बैचेस का है। कैन वन ऑफ यू मेक अ ग्रुप और मुझे एडमिन बना दें उसमें, और खुद भी और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी बैचेस 249 ऑनवर्ड्स लिख दीजिए, और फिर हम उस ग्रुप का यहाँ पे लिंक शेयर करेंगे और सब लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ओके ओके, वो तो खैर मैं प्रीवियस डेटा नहीं भी अगर डॉक्यूमेंट शो हो रहा है तो मैं कर दूंगा वो, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। टेलीग्राम क्या है? व्हाट्स दैट? आई डोंट यूज दैट। टेलीग्राम, व्हाट्स दैट? ओके, टेलीग्राम, आई डोंट नो ऑफ दैट ऐप। हाउ कम एंड व्हाई? ओके, लेट मी सर्च फॉर इट। टेलीग्राम, टेलीग्राम मैसेंजर, इज दैट द ऐप? टेलीग्राम, ओके, टेलीग्राम। Okay, Telegram is downloading on my system. Anyhow, okay, let's get back to this. चलिए, हमें नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से आपको एवोल्यूशन वाली चीज आ जाएगी समझ। वेट, गवर्नेंस, पॉलिसी, डॉक्यूमेंट्स, ओके। Can you see this document that I'm sharing? बेहतर, मैंने टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया आप लोगों से बात करते करते। These are the notes, ये अब लेक्चर 1 और 2 के नोट्स हैं, लेकिन इसके अंदर गुड गवर्नेंस भी है जो लेक्चर 2 है हमारा, उसको नहीं अभी आपने देखना, आपने सिर्फ लेक्चर 1 पे फोकस करना है। लेक्चर 1, अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो गवर्नेंस की डेफिनेशंस वगैरह नहीं, इसके अंदर आपको पेज 2, पेज 3 पे एवोल्यूशन ऑफ
the term governance या evolution of good governance आपको मिलेगी. So that's what we're discussing right now. अच्छा, एक चीज और है जो मुझे नोट्स में भी नजर आ रही है, जिसके ऊपर हमने बात नहीं की, उसके ऊपर भी हम अभी आते हैं. ग्रुप आप लोग बना लें व्हाट्सएप का, मुझे ऐड कर लें. टेलीग्राम पे बनाना है, वहां मुझे ऐड करना है, जो आप लोग डिसाइड करते हैं. I'm in, I've joined. और ओके, I've joined. मुझे एडमिन बना दीजिए ताकि मैं डायरेक्टली शेयर करता रहूं और मजीद लोगों को भी इनवाइट करता रहूं. ठीक है, चल. ओके, दैट्स सॉर्टेड नाउ. जी, चैट में लिंक आ गया, अब आप सब ज्वाइन कर लें. नो way. Okay, let's start talking about governance now. Governance again. Okay, evolution कैसे हुई टर्म गवर्नेंस की? एक बात याद रखिए पहले तो एवोल्यूशन से, कि एक टर्म है गुड गवर्नेंस, जो में क्योंकि गवर्नेंस एक ऑल एनकम्पसिंग और वेग किस्म की रियलिटी थी, तो कंट्रीज को कहा जाता था कि आप गवर्नेंस को इंप्रूव करें, इंप्रूव करें, इंप्रूव करें. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थे, कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, they started asking the question that it is, how do we improve governance? And the world came up, the international development organizations like UN, World Bank, IMF, they came up with this idea of good governance, जिसमें उन्होंने 6 indicators या 6 dimensions identify की. Put very simply, उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को बताया कि आप ये 6 चीजें कर लें तो योर गवर्नेंस विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव, राइट? और उन्होंने, चूंकि वो इंडिकेटर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हम इन 6 चीजों को फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हर साल या 2 साल बाद मेजर भी करेंगे. उसको उन्होंने नाम रख दिया वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, WGI, व्हिच द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स. ये मैं रिपीट कर रहा हूं बात फॉर एवरीवन, कि जब दुनिया में ये बात आती रही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहती थी डेवलपिंग कंट्रीज क्या गवर्नेंस इंप्रूव करें, तो वो कहते थे कि हमें गवर्नेंस एक ऑल एनकम्पसिंग रियलिटी है, हम किस किस चीज के अंदर चेंजेस लाएं, किस किस चीज को इंप्रूव करें. तो उन्होंने कहा कि लेट्स मेक इट क्लियरर एंड इजियर फॉर यू, आप इन 6 एरियाज के ऊपर काम करें. वो एरियाज पे हम सेकंड लेक्चर में आएंगे. तो आप इन 6 एरियाज में काम करें तो आपकी गवर्नेंस ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गवर्निंग इन अ गुड वे. और उसके लिए उन 6 को उन्होंने इंडिकेटर्स भी बना दिए, यानी जिन मेजरेबल इंडिकेटर्स. जैसे फॉर इंस्टेंस एक इंडिकेटर है कंट्रोल ऑफ करप्शन, तो हर मुल्क का उन्होंने करप्शन इंडेक्स भी कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान हर साल करप्शन में कितनी इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो उससे पाकिस्तान कितना अच्छा गवर्न कर रहा है वो पता चलता जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उन्होंने 6 इंडिकेटर्स दे दिए पूरी दुनिया को, जिसको हम गुड गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बोलते हैं. एक यूनिवर्सल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बन गया दैट ऑल कंट्रीज अडहेयर टू. लेकिन ये गुड गवर्नेंस तक बहस इंटरनेशनल वेट है, वो गुड गवर्नेंस तक आई, ये है पहुंचते पहुंचते गुड गवर्नेंस तक कैसे पहुंची इज द evolution of this term good governance and evolution of governance as well. अब मैं इसके 3 या 4 मेजर बातें बताता हूं, वहां से आपको समझ आ जाएगी. You don't need to get into a lot of details about it. The first thing was that, पहली चीज इसमें ये छोटा सा एक बात अपने वर्ड्स में बेशक कि बैक इन द 1950s, ये जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम है, वर्ल्ड 1945 के बाद, वर्ल्ड 2 के बाद, इसमें दुनिया का जो फोकस था, जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी, IMF, वर्ल्ड बैंक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो द वर्ल्ड वाज मूविंग टुवर्ड्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन.
फिर केयर कर रहे थे, लोग कंफर्टेबली कन्वीनियंटली मूव भी कर सकते थे. So it was becoming a global village, one world. और उस वक्त ये हुआ, कुछ कम्युनिस्ट स्टेट्स ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये सादा कैपिटलिस्ट स्टेट्स जो थी उनमें ये ज्यादा प्रैक्टिस फॉलो हो रही थी. दुनिया ने उस वक्त जब फोकस करना शुरू किया ट्रेड और इसके ऊपर और इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर फोकस किया, तो काफी अरसे तक ये बात चलती रही कि दोज कंट्रीज दैट गेट एम्बेडेड इनटू दिस इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम और जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं, दोस्त जो एडम स्मिथ की भी इकोनॉमिक की थ्योरी थी, तो दोज कंट्रीज वुड बेनिफिट और वो मुल्क ममालिक ऑटोमेटिकली डेवलप करेंगे. ठीक. अच्छा, इसी दौरान एक तो थीसिस ये था, एक थीसिस इस दौरान जो सेकंड थीसिस था उस दौरान वो था क्लाइमेट आर्गुमेंट. लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने देखने की कोशिश की कि कौन से ममालिक हैं दुनिया में जो ज्यादा डेवलप्ड है. तो वो सारे ममालिक थे नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, दुनिया में ग्लोबल नॉर्थ में, जहां ठंडा क्लाइमेट था. तो उन्होंने रीजन ये बताया कि शायद एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग कंडीशंस भी बेहतर हैं और लेबर को, चूंकि लेबर उतना स्वेट नहीं करती, गर्मी उतनी नहीं आती, तो लेबर की हेल्थ भी बेहतर रहती है. तो लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है ग्लोबल नॉर्थ में. द लेबर इज मोर प्रोडक्टिव एज अपोज टू ग्लोबल साउथ, व्हिच इज द प्राइमरी रीजन व्हाई द कंट्रीज इन द ग्लोबल नॉर्थ आर मोर डेवलप्ड. यानी जो कोल्डर क्लाइमेट्स में कंट्रीज हैं, दे आर मोर डेवलप्ड कंपेयर्ड टू कंट्रीज इन द हॉटर क्लाइमेट्स. इसको हम कहते थे क्लाइमेट आर्गुमेंट. अच्छा, उसके ये सेकंड बात. थर्ड बात क्या हुई कि एकदम चाइना ने 1979 में अपने बॉर्डर्स खोले. उससे पहले चाइना वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, वो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करती थी. और 70s में सिंगापुर और मलेशिया ने, ये सारे कंट्रीज वो हैं जो एशियन इकोनॉमीज थी, मीनिंग देयर बाय दैट दे वर इन द ग्लोबल साउथ, नॉट इन द ग्लोबल नॉर्थ. और इन्होंने डेवलप करना शुरू किया, तो ये जो क्लाइमेट आर्गुमेंट जो था वो ऑटोमेटिकली डिफीट हो गया. ने कहा कि ये क्या हो गया, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज 7-8% पर एनम ग्रो करना शुरू हो गए. तो वो जो मिथ थी क्लाइमेट वाली, दैट गॉट डिबंक्ड. वो मिथ डिबंक हो गई. वो मिथ जब डिबंक हुई तो इकोनॉमिस्ट्स वर रियली इंटरेस्टेड इन विजिटिंग दीज ईस्ट एशियन इकोनॉमीज and seeing the miracle before their eyes, what exactly happened there. So a lot of economists flew into Beijing and other parts of East Asia to see, these events unfolding in front of their eyes. And what they saw was very, very interesting. क्योंकि उस वक्त चाइना कम्युनिस्ट था, तो कम्युनिस्ट इकोनॉमीज क्लोज्ड होती है, उनकी न्यूज भी बाहर नहीं जाती, जैसे अब नॉर्थ कोरिया है आजकल प्रेजेंट टाइम्स. मीडिया भी फ्री नहीं है, तो न्यूज भी बाहर नहीं जाती. इंफॉर्मेशन, यानी नाइदर कैन पीपल ट्रैवल, नॉर कैन गुड्स ट्रैवल, नॉर कैन इंफॉर्मेशन ट्रैवल. तो इसलिए नॉट मच वाज नोन अबाउट चाइना. सो पीपल वेंट इनटू चाइना इन द 80s एंड दे ट्राइड टू sort of figure out what was happening. So what they saw was कि हर घर में इंडस्ट्री खुली हुई है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. So they saw that there was this very, very large industrial sector which was causing this growth in China. And the state had provided them ease of doing business. और इतनी ease थी कि आप घर बैठे हुए without any licensing और capital requirements आप इंडस्ट्री खोल सकते थे. And people were opening industry और वो पैसा कमा रहे थे. और एकदम जब उन्होंने बॉर्डर्स खोले 1979 के बाद, तो उन्होंने पूरी दुनिया को फ्लड करना शुरू कर दिया अपने चीप प्रोडक्ट से. तो दुनिया का ईस्ट एशियन मिरेकल को देखने के बाद पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट और इंटरनेशनल पॉलिसी का फोकस इसके ऊपर आ गया कि आप पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो सॉर्ट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट जो इमर्ज किया, वो स्कूल ऑफ थॉट ये था कि आपकी अगर आप इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हो तो फिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और नेशंस डेवलप करेंगी. यानी पहला क्या था, ट्रेड से डेवलप करेंगी खाली. दूसरा क्या था, क्लाइमेट अगर आपका कंड्यूसिव है तो आप डेवलप करोगे. तीसरा आर्गुमेंट ये आ गया, जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट था जो बाद में 80s में ज्यादा इवॉल्व हुआ,
वो था कि आप 80s में जो इवॉल्व हुआ वो ये था कि आप इंडस्ट्रीज को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली करोगे. लेकिन एट द सेम टाइम सम मोर इकोनॉमिस्ट हु फ्लू इनटू चाइना सॉ कि चाइना कोई डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाइना मैनेज 6 to 7% पर एनम उनका जीडीपी ग्रो करता है. बट चाइना इज स्टिल वेरी पुअर. सारे रिमोट विलेजेस पुअर हैं. उतनी अच्छी हेल्थ एजुकेशन सड़कें जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में है वो तो नहीं है चाइना. सो दे सेड कि डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है लेकिन उसके ये जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कोई इतनी इक्विटेबल और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो दुनिया का फोकस उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपका फोकस होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉट जस्ट इंडस्ट्रीज. यू नीड टू डेवलप पीपल. अगर इंडस्ट्रीज से आपके जो गवर्नमेंट पैसा कमाती है, इफ दैट इज स्पेंट इक्विटेबली ऑन द पीपल, ऑन बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, ऑन पॉवर्टी एलिविएशन, तो फिर उस ग्रोथ उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का या उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं. दुनिया का पूरा फोकस आ गया कि नेशंस डेवलप होती हैं बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमंस. ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. अच्छा, उन्होंने कहा चौथी चीज आ गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट. अब पांचवी चीज क्या थी? पूरा जो थिंक टैंक्स थे और पूरी दुनिया का डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऑल ऑफ देम बिगैन टू टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. उसी वक्त 1990 में there's an economist called Douglas North. He published a path-breaking paper on institutions, and he said his opinion was कि जो दुनिया में कंट्रीज पोअर रह जाते हैं वो सिर्फ पोअर इसलिए रहते हैं बिकॉज दे हैव पोअर इंस्टीट्यूशंस. उनके इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी पोअर होती है. तो वहां से दुनिया की चीज ये इस तरफ आगे लोग कि अच्छा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एट द सेंटर और उसके नीचे है लोग. आपने उस ग्रोथ के बेनिफिट्स को ट्रांसफर करना है लोगों तक. तो उसमें दरमियान में ब्रिज कौन है? Who would redistribute those resources to the people? Those would always be redistributed through the institutions. इसकी मैं आपको आजकल ताजा मिसाल देता हूं कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इंस्टीट्यूशन क्वालिटी है. पाकिस्तान में एक अकेला इंस्टीट्यूशन है विद अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी. अब आप देखें कि चूंकि वो इदारा डेवलप हुआ था तो उसी इदारे को पीपल्स पार्टी के दौर में भी इस्तेमाल किया गया. हुकूमतें चेंज होती यानी गवर्नेंस जो गवर्नमेंट थी वो चेंज होती गई लेकिन चूंकि एक इंस्टीट्यूशन वेरी गुड क्वालिटी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड, गवर्नमेंट ने आके उसको और एक दफा वो इदारा बना हुआ था तो इस गवर्नमेंट ने भी अपना एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया और उसी के बेनिफिशरीज को 12-12 हजार रुपए कोरोना वायरस के दरमियान इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किए. ठीक है, कुछ लोगों को नहीं मिले. हमेशा इतने बड़े स्केल के प्रोग्राम पे डाइवर्जेंसेस छोटी मोटी जरूर होती हैं पर वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंप्लीमेंट हो सका एंड देन द वर्ल्ड वांटेड टू लर्न फ्रॉम इट. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम आवर लेसन तो आप हमसे सीख सकते हैं. बिस्प के जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो एक्सपीरियंस है इंडिया कैन लर्न फ्रॉम इट. सो एनीवेज, सो ही वाज काइंड ऑफ प्राउड अबाउट इट. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस केस में क्या हुआ कि जो स्टेट के पास रिसोर्सेज थे उनको लोगों तक रीडिस्ट्रीब्यूट किया एक इंस्टीट्यूशन ने. तो यही डिबेट उस वक्त हुई कि आपकी अगर ग्रोथ होती है, लेट्स से पाकिस्तान का जीडीपी हर साल 7% ग्रो करता है, वेरी हाई ग्रोथ रेट, पर लोगों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ नहीं मिलती तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है अनलेस इट इज इन्वेस्टेड ऑन ह्यूमंस. तो ये तो बात जस्टिफाई हो गई थी. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ह्यूमंस तक कैसे पहुंचेगी. तो डगलस नॉर्थ ने उसका सोल्यूशन दिया कि इट शुड गो थ्रू वेरी वेरी गुड एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस. अच्छा, दैट वाज डन. उसके बाद एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बाद पूरी दुनिया का फोकस आ गया इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे. उन्होंने कहा कि इफ यू डेवलप योर इंस्टीट्यूशंस नेशंस विल डेवलप. और इसी डगलस नॉर्थ के ही एक डिसाइपल थे डैरेन एशमोग्लू और रॉबिन्सन. उनकी आप सबको पता होगा, बड़ी मशहूर सीएसएस में लोग रेकमेंड करते हैं किताब व्हाई नेशंस फेल, जिन्होंने 2012 में लिखी. वो
एग्जैक्टली इट इज अ बुक इंस्पायर्ड बाय डगलस नॉर्थ थ्योरीज, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली नेशंस डेवलप होंगी। और व्हाई नेशंस फेल, जो उसका टाइटल है किताब का, उसका मतलब यही है कि जो ममालिक इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप, स्ट्रेंथेंड और डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस क्रिएट नहीं कर सकेंगे, वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। एनीवेज, इंस्टीट्यूशन से डिबेट आ गई कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें। डेवलपिंग कंट्रीज ने फिर ये कहा कि भाई इट्स इजियर सेड देन डन। आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस इंप्रूव करो, हाउ डू वी डू इट? We've been trying, tugging at it for the last 60 years, but it's easier said than done. इतना आसान काम तो नहीं है। तो फिर उन्हीं इदारों ने, इंटरनेशनल इदारों ने, जो ये प्रपोज कर रहे थे, इदारे लाइक द वर्ल्ड बैंक, IMF, all of them said that we tell you ourselves how to do it. We'll give you the recipe ourselves. They said, okay, fine, give us the recipe. And then they gave them the recipe कि आप इदारे कैसे इंप्रूव करोगे। और उस रेसिपी को हम कहते हैं गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। उन्होंने बताया कि आप इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सारी सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गवर्नेंस आप इंप्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली गुड गवर्नेंस इंश्योर हो जाएगी। ये है एवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व हुई। और इसी वजह से मैंने आपको शुरू में कहा था कि 90s की टाइमलाइन को देखिएगा कि उसके बाद वर्ल्ड बैंक और IMF और UNDP और सब डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफाइन करना शुरू किया कि गवर्नेंस क्या होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हम इंस्टीट्यूशंस की तो बात कर रहे हैं, ये जो पूरा गवर्नेंस का सारा मामला है, इसमें खाली स्टेक होल्डर गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है? इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारा काम जो गवर्नमेंट्स ने करना होता है वो NGOs भी कर रही हैं, हेल्थ के काम, एजुकेशन के काम, तो उनकी एक सपोर्ट है। तो दे आर अ मेजर स्टेक होल्डर इन दिस गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। फिर वो एज प्रेशर ग्रुप्स भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो सर्टेन तरह की पॉलिसीज भी वो गवर्नमेंट से बनवाती हैं, स्टीयर करती हैं गवर्नमेंट की डायरेक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। NGOs। सेकेंड तरह की स्टेक होल्डर्स कौन है? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम CSOs बोलते हैं, वो भी एज अ प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। थर्ड स्टेक होल्डर कौन है इस पूरे गवर्नेंस के प्रोसेस में, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट खुद तो स्टेक होल्डर है ही। थर्ड है आपकी जुडिशरी, जिसका हम तस्करा कर चुके हैं। फोर्थ है आपका द लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट कह सकते हैं उसको। फोर्थ, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिफ्थ है आपका मीडिया। अब मीडिया भी एज अ प्रेशर ग्रुप वर्क करता है। पॉलिसी इश्यूज की आइडेंटिफिकेशन मीडिया, निशानदही मीडिया करता है, एडवोकेसी मीडिया करता है। फिर NGOs के साथ आप ये भी लिखिएगा इंटरनेशनल NGOs, इंगोस। फिर छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें ये सारी आती है, वर्ल्ड बैंक, UNDP। ये लोग सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज भी, यानी टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और फिर पब्लिक पॉलिसी को भी स्टीयर करते हैं सर्टेन डायरेक्शंस। फिर इसमें आप लिखिए एकेडेमिया, यानी यूनिवर्सिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। एकेडेमिया, यूनिवर्सिटीज, क्योंकि वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उस रिसर्च की बेसिस पे पॉलिसीज डेवलप होती हैं। जैसे आजकल फॉर इंस्टेंस, फिर मैं कोरोना की एग्जांपल पे आऊंगा, कि आजकल आपकी इकोनॉमिक रिसर्च जितनी हो रही है कि आप 10 दिन का लॉकडाउन करेंगे तो आपका स्टेट का इकोनॉमिक लॉस कितना होगा, और अगर आप लॉकडाउन नहीं करते तो आपका लाइव्स का लॉस कितना होगा। ये रिसर्च कौन कंडक्ट कर रहा है? यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर्स सिमुलेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी कोरोना के दरमियान लॉकडाउन और इकोनॉमिक पॉलिसी उसकी बेसिस पे बन रही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एकेडेमिया का। फिर आपके आ जाते हैं थिंक टैंक्स, जो प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं या थिंक टैंक्स हैं। जैसे वेस्ट अमेरिका के अंदर ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट है, हूवर इंस्टीट्यूशन है। ये सारी
नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, प्राइवेट थिंक टैंक्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं और ये गवर्नमेंट को गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर या पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये 7-8 स्टेक होल्डर्स का भी रोल है, इनको भी समझिए। अब जब हम सेकंड लेक्चर में गुड गवर्नेंस और थर्ड लेक्चर में हम पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो गुड गवर्नेंस के भी 6 इंडिकेटर्स हैं और पब्लिक पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है उसके भी 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स के थ्रू पब्लिक पॉलिसी बनती है। तो ये अगले दोनों लेक्चर्स में हमारे 6 बस स्टेप्स होंगे जो हमने डिस्कस करने हैं सेकंड में और थर्ड लेक्चर। तो आज मैंने बेस सेट कर दी है, एवोल्यूशन करा दिया, गवर्नेंस की डेफिनेशंस करा दी और अब ये मैंने स्टेक होल्डर्स भी आपको गवर्नेंस के इस प्रोसेस में जो होते हैं सारे वो बता दिए। और उससे पहले जो हमने बाकी चीजें डिस्कस की, स्टेट का स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट कौन होती है, लॉ और पब्लिक पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस हैं, लॉ क्या है, पब्लिक पॉलिसी क्या है, सो ऑल ऑफ दैट. So I hope you had a good session. I think we should stop here. It's 9:01 now. और मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है उसका, मुझे अगर आपने एडमिन बना दिया है तो बस ठीक है, यहाँ रुकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। कोई सवाल है तो ग्रुप में भी बेशक डायरेक्ट कर दीजिएगा, मुझे वहां वक्त मिलेगा तो मैं वहां भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें मेरा नंबर नहीं शो हो रहा। ओके